Hello, good evening, all across the country, my respected participants, wherever you are sitting. Welcome to each one of you. Our today's session is about leveraging ATA Carnet in international trade or in foreign trade. My respected friends, on behalf of Indian Institute of Foreign Trade, I extend a warm welcome to each one of you to today's session on leveraging ATA Carnet. My respected friends, let us first try to understand what is ATA Carnet. And I will usually discuss from my heart, and you must be having Google with you. You can Google out this information and subsequently develop your expertise to further understand the nuances of ATA Carnet. My respected friends, this is a very dynamic subject, ever evolving subject where information keep on changing almost every month or every quarters or on a yearly basis. So you can go to ATA Carnet website, which is owned by FICCI, and where you can you say Google out the information that how to leverage it. But let me give you a broad overnote that how ATA Carnets are used in international trade. My respected friends, first of all, let us understand what is ATA Carnet. ATA means admission temporary. Admission temporary. माने temporary export or temporary admission. In fact, ATA Carnet is a combination of two words. First is a AT means admission temporary. Second is French word which means temporary admission. दो भाषाएं, पहली भाषा इंग्लिश, दूसरी भाषा फ्रेंच. इसका वर्ड है टेम्परेरी एडमिशन. When sometimes we have to take our cargo for the purpose of temporary export. ये temporary export की जरूरत क्यों पड़ी? Why this temporary export is required? My respected friends, let us take an example, and that's the case-based learning. In fact, is the best learning, and let us try to understand based on our cases. Let us take there is a exporter based in Mumbai. This exporter want to identify new markets, explore new markets. He want to test new markets, and he want to explore the export opportunities. But he's not sure whether he will be able to sell in these countries or not. And in order to explore those markets, he want to participate in a trade fair or exhibition or some numaish or some buyer seller meet or some any other activity which is aimed at trade promotion. My dear friends, let us take an example. There is a exporter based in Mumbai called Mr. Gupta. Mr. Gupta want to export and identify new market. He is a gems and jewelry manufacturer. He sells gems and jewelry. He get every year some buyers from Gulf countries. Those who come from, those who come from countries like Dubai, country like, for example, Oman or other places. My respected friends, those buyers are very happy with the kind of design that this jeweler gentleman Gupta offers. And they have requested for time and again, if you open a showroom in Oman or in Dubai or in Riyadh or in any other places like in Al Manama or in Doha, you will have a good sales because there is a lot of Indian diaspora there, and you will have a lot of opportunities for export. My respected friends, बहुत बड़ा एक trade promotion event है, which is nothing but a what we can say is an event of kind of exhibition. Like in India, several event happens at ITPO in Indian Trade Promotion Organization, Pragati Maidan. You will find every year lot of events happen. Similar fashion, Dubai is basically a tourism destination. Almost 2 crore tourists comes every year. This economy is based on tourism. So they keep on conducting various kind of buyer seller meets or various kind of you say exhibitions or trade fair. Big trade fair is likely to happen in city of Dubai, very close to Burj Khalifa. There is a town which has been assigned for this purpose. My respected friend Mr. Gupta want to participate in that trade fair. He want to take his cargo. Let us assume he select his best of the designs and he want to travel to Dubai where he want to sell it. My respected friends,
My respected friends, it is Gupta. First, he will take his cargo from what we call from Mumbai to Dubai. So he will take his cargo from Mumbai to Dubai. When he take a export transaction, no taxes are charged by Indian custom because exports are usually zero tax rated. So there is no tax. But when the same cargo lands in Dubai, जब सेम कार्गो मुंबई में जाएगा वहां पर इस पे टैक्स लगेगा, बिल ऑफ एंट्री फाइल होगा, टैक्स लगेगा और इंपोर्ट. Let us take the total volume value of cargo is worth 2 crore rupees, attracting a tax of 20%. तो लगभग लगभग 40 लाख रुपए 2 करोड़ के ट्रांजैक्शन पे देने पड़ेंगे जेंटलमैन गुप्ता को टू दुबई कस्टम्स, विच विल बी इज नथिंग बट ए लॉस. वो तो एक लॉस है मिस्टर गुप्ता का, प्यारे मित्रों. उसके बाद में जेंटलमैन गुप्ता जेंटलमैन. So gentleman Gupta will land up there and will pay 40 lakh rupee as a duty. My respected friends, this is a waste for gentleman Gupta. And then he will participate in a trade fair or exhibition. And when he participates in trade fair exhibitions, my respected friends, he want to come back, bring back the same cargo which he has taken to another country. So when he is bringing back that cargo, he is coming to Mumbai, it will be treated as import. At the time of going out of India, it will be treated as export. At the time of coming into India, it will be treated as an import. My respected friends, this become a double tax event. When he land in Dubai, he pay 40 lakh rupee as a tax. When he comes back in Mumbai, he again pay tax. How much? 30%. 2 crore pay on cargo value of 2 crore rupee, 30% will be almost 60 lakhs. So by the time he reach his place, he has wasted 1 crore rupee just as a duties. His purpose was only to explore a market. He want to explore a new market where he want to see the trade opportunities, whether he will be able to sell or not. My respected friends, similar fashion, it is always a constant endeavor of every exporter to identify market at a low cost. So it is a waste. So in order to address such kind of redundancies in foreign trade, such kind of challenges in foreign trade, such kind of problems where the exporter even cannot participate in a trade fair or exhibition or buyer seller meet to promote their export, a treaty has come up. Treaty has come up in 1961, December 1961, a custom convention on ATA carnet. प्यारे मित्रों, मैं हिंदी में भी बता दूं, 1961 में custom convention on ATA carnet for temporary admission of goods is signed by a country. Purpose was to facilitate, promote, and encourage export and import. Because when buyer and seller meet, when new products comes, our ability to appreciate those things and to buy those things and to leverage those things for our economic development become much higher. So as a result, the countries signed an agreement where India was not a party in 1961. India became a party in 1994. आपको पता होगा प्यारे मित्रों, भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स स्टार्ट हुए 1991 में. So the total discussion so far has been that ATA carnet is a passport for duty free export to a country where you want to showcase your goods, you want to participate in a trade fair, in a buyer seller meet, or in an exhibition to show your goods and so that you can get a prospective buyers. And when you show your goods to various buyers and seller, your ability to sell become much higher, much higher. मेरे प्यारे मित्रों, ये बेसिक डिस्कशन था एटीए कार्नेट पे. और अगर इसको मैं एक वर्ड में कहूँ, एक लाइन में कहूँ, सो इट इज नथिंग बट ए पासपोर्ट फॉर ड्यूटी फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स for the purpose of taking them out of India and bringing them into India. अगर ये काम जैसे गुप्ता जी ने 40 लाख रुपए दुबई में दिए और 40 लाख रुपए उन्होंने 60 लाख रुपए वापस इंडिया में दिए,
1 करोड़ रुपए की गुप्ता जी की वेस्ट हुई। इस 1 करोड़ रुपए को बचाया जा सकता है कैसे? इस 1 करोड़ रुपए को एटीए कार्नेट, अगर वो एटीए कार्नेट लेके जाते, एक पासपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट लेके जाते, एक ये डॉक्यूमेंट अगर वो लेवरेज करते, प्यारे मित्रों, ना तो उनके ऊपर दुबई में ड्यूटी लगती और ना ही उनके ऊपर भारत में ड्यूटी लगती। इस प्रकार से एक पासपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट है एटीए कार्नेट। ये ब्रीफ डिस्कशन मैंने शुरुआती 15 मिनट में आपको बताया। प्यारे मित्रों, ये जो वर्ल्ड चेंबर फेडरेशन जो सिस्टम है, इसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आर नाउ सेट बाय वर्ल्ड चेंबर्स जो है फेडरेशन, डब्ल्यूसीएफ के नाम से। बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज नोन एज इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, पहले इसका नाम था ये। इसमें एज ऑन टुडे 78 कंट्री, 79 कंट्री। एक कंट्री ऐसा है वो जो कस्टम दूसरे कंट्री का यूज करता है, उसका नाम है लग्जमबर्ग, जो कि बेल्जियम का कस्टम यूज करता है। लेकिन कुल मिला के 78 कंट्री इसके मेंबर है। 78 countries leveraging an instrument so as to promote export and import, encourage export and import, facilitate export and import, and provide a level playing field for their traders to do business at in a low manner, in a cost effective manner, in a low possible cost manner. सो ये एक इंस्ट्रूमेंट दिया गया है जिसमें कि 78 कंट्री, 78 कंट्री एज ऑन टुडे आर मेंबर्स। माय रिस्पेक्टेड फ्रेंड्स, लेट अस मूव फॉरवर्ड, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसको इशू कौन करता है एटीए कार्नेट को? अगर आप बैठे हैं साथ साथ गूगल खोल लें, गूगल पे टाइप करें एटीए कार्नेट इंडिया। भारत में एक बॉडी है, बॉडी का नाम है फिक्की। फिक्की भारत में एटीए कार्नेट को इशू करती है, ये फिक्की। और देखिए आप वेबसाइट पे जाएंगे, जब उसकी वेबसाइट पे, फिक्की की वेबसाइट पे, तो आप चाहे तो साथ साथ खोल ले, देखो उस पर लिखा हुआ है कि ये एक ड्यूटी फ्री पासपोर्ट है। इसमें 78 कंट्री है। आप क्लिक करें कंट्रीज पे, आपको उन 78 कंट्रियों की 78 कंट्रियों की लिस्ट मिल जाएगी। मैं 1 मिनट रुक जाता हूँ, आप लोग तब तक गूगल आउट करें इंफॉर्मेशन को और देखें जरा सा किस प्रकार से 78 कंट्री जो हैं इसके मेंबर है। माय रिस्पेक्टेड फ्रेंड्स, लेट अस मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसमें 78 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। प्यारे मित्रों, ये जो एटीए कार्नेट है जो एटीए कार्नेट है, ये 1961 से ही चला आ रहा है और इसको पहले फैसिलिटेट करता था वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, जिसको पहले कहते थे कस्टम कोऑपरेशन काउंसिल, अब इसका नाम हो गया वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। ये बेल्जियम में बेस्ड है। इसके आज 78 कंट्री इसके मेंबर हैं। इंडिया में इसका जो पार्टनर है, इसकी जो बॉडी है वो फिक्की है। भारत सरकार ने फिक्की को इसका गारंटर बनाया। इंडिया सोल नेशनल इशूइंग एंड गारंटिंग एसोसिएशन नीगा फॉर एटीए कार्नेट, उसके ऊपर लिखा है, अगर आप वेबसाइट देखो ऐसा लिखा होगा। प्यारे मित्रों, यहाँ पर जरा सा नीचे को स्क्रॉल डाउन करें थोड़ा सा, तो लिखा होगा हाउ टू गेट एटीए कार्नेट। एटीए कार्नेट मिलती कैसे है? एटीए कार्नेट के लिए कुछ बेसिक फॉर्मेलिटीज हैं दैट वी हैव टू फुलफिल इट अप। एक तो एटीए कार्नेट पे जब भी लेना हो, नंबर वन, ए पर्सन मस्ट हैव ए क्लियर माइंड कि वो जाएगा और पार्टिसिपेट करे एग्जीबिशन में और उन गुड्स को वापस लाएगा। क्या वो उन गुड्स को बेच सकता है? मैं कहूंगा बिल्कुल बेच सकता है। वो उस प्रोसीजर पे बाद में आएंगे, पहले डिस्कस करते हैं कि वो सामान लेके जाएगा और सामान वापस लेके आएगा। लेट मी टेक एन एग्जांपल। देयर इज अ जेंटलमैन बेस्ड इन Saharanpur. He manufacture woodcraft. He want to showcase his woodcraft to countries where there is a demand for such cultural products. So he want to sell his furniture hypothetically either to Gulf countries or to Japan. So उसको सहारनपुर से अपना फर्नीचर लेके जाना है टोक्यो। So he will technically what he will do? He will first manufacture very high quality goods which are usually made from शीशम। बहुत हाई क्वालिटी गुड्स बनाएगा वो। एंड देन माय रिस्पेक्टेड फ्रेंड्स, उस सामान को पैक करेगा कंटेनर में कुशनिंग मटेरियल देके। देन ही विल ट्रांसपोर्ट दिस ट्रक टू समवेयर इन दिल्ली वेयर कस्टम क्लियरेंस विल टेक प्लेस एट दिल्ली एयरपोर्ट। एंड देन these containers either by sea routes or by or by what we can say air usually। ज्यादातर आजकल क्योंकि सी रूट्स बहुत एडवांस प्लानिंग हो, इट कैन बी पॉसिबल, नहीं तो सामान एयर से जाता है। बट दोज हु डू एडवांस प्लानिंग कैन आल्सो सेंड देयर कार्गो इन एडवांस to country of destination by booking their cargo, maybe planning 1.5 months, because sea cargo may take longer period of time। तो आपका कार्गो आप कंसाइनी बना देंगे उस इवेंट ऑर्गेनाइजर को और यहाँ से अपना सामान बेच देंगे। लेकिन when you bring your cargo here, Indian customs at the time of clearance will ask you to complete certain formalities। वो क्या है? नंबर वन, they will ask you to file shipping bill।
आपने शिपिंग बिल फाइल किया, सर्टेन डॉक्यूमेंट, इनवॉइस की कॉपी, इसके अलावा कस्टम की कॉपी। यू कैन डू दिस आल्सो वेरी क्लोज टू समवेयर इन सहारनपुर, जहां पर आईसीडी हो सकता है। मैं दिल्ली का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं, आई बिलीव दैट कार्गो विल गो बाय एयर, सो ही हैज टू ब्रिंग योर कार्गो बाय कंटेनर्स, स्मॉल कंटेनर्स, यूनिट लोड डिवाइसेस आपको लाना पड़ेगा, एंड देन यू विल क्लियर इट। और फिर ये स्टफ किया जाएगा यूएलडी में, छोटे छोटे यूएलडी होते हैं जो जो एयरपोर्ट्स पे आप देखते हैं, यूनिट लोड डिवाइसेस, उसमें स्टफ होगा, और फिर इसका कस्टम क्लियरेंस होगा। तो शिपिंग बिल फाइल होगा, इनवॉइस फाइल होगा, और बिल ऑफ एंट्री की कॉपी देनी पड़ेगी। इसके अलावा कस्टम कहेगा फीमा का डिक्लेरेशन दीजिए, फीमा का डिक्लेरेशन, क्योंकि आपका कोई भी एक्सपोर्ट ऑर्डर इफ इट इज मोर देन 25,000 यूएस डॉलर, आपको फीमा की डिक्लेरेशन देनी होती है। सिंस योर कार्गो इज गोइंग एंड कार्गो इज कमिंग बैक, यू आर नॉट एक्सपोर्टिंग इट, ये टेम्परेरी एक्सपोर्ट है, आप कहोगे कि मुझे इससे एग्जम्पशन चाहिए, तो फिर वो कस्टम कहेगा भाई डॉक्यूमेंट क्या है, तो इसके लिए आपको चाहिए एटीए कार्नेट। तो आपको पहले एटीए कार्नेट लेनी है, फिर शिपिंग बिल फाइल करना है। सो हु इश्यूज यू एटीए कार्नेट? फिकी। फिक्की की वेबसाइट पे जाएं, स्क्रॉल डाउन करें, नीचे लिखा हुआ हाउ टू गेट एटीए कार्नेट। आप फिक्की की वेबसाइट पे एक लॉगिन बना सकते हैं, उस लॉगिन में एक ईमेल बेस्ड लॉगिन आईडी है ऑनलाइन, और आप ऑनलाइन ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। प्यारे मित्रों, ये जब आपने इसको लॉगिन आईडी बना लिया, यू कैन इलेक्ट्रॉनिकली अप्लाई, और फिर आपको ये चार डॉक्यूमेंट, चार स्टेप्स हैं, आप देख लीजिए। हाउ टू गेट एटीए कार्ड जब लिखा हुआ चार स्टेप है। नंबर वन, आपको एप्लीकेशन भरनी होगी, उस एप्लीकेशन में सम इंफॉर्मेशन है कि ये एटीए कार्नेट के बारे में कहाँ जाना चाहते हैं, कंट्री ऑफ एक्सपोर्ट क्या होगा, कंट्री ऑफ इंपोर्ट क्या होगा, है कार्गो क्या है, कार्गो का नेचर क्या है, इस तरीके से बेसिक डिटेल आपको उसमें देनी होगी। फिकी की जो जो हमारा जो फिकी बॉडी है जिसको की अथॉरिटी दी गई है। उसके बाद में प्यारे मित्रों एक बैंक गारंटी। वाई बैंक गारंटी? क्योंकि अगर आप वहां गए और सामान बेच दिया या वहां से भाग आए, तो रेवेन्यू का लॉस होगा जापान की गवर्नमेंट का। तो जापान गवर्नमेंट विल आस्क टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल आस्क टू फिक्की की भी, फिक्की जी आप बताइए। सो फिक्की कवर देमसेल्व्स इन ऑर्डर टू मीट सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स व्हिच में अराइज इन फ्यूचर। तो फिक्की क्या करेगी? फिक्की आपसे एक बैंक गारंटी ले लेगी, बैंक गारंटी ले लेगी विच इज यूजुअली इक्विवेलेंट टू अमाउंट ऑफ ड्यूटी और सम मार्जिन, उसके ऊपर थोड़ा मार्जिन रख लेते हैं वो अपने। तो जितनी ड्यूटी वो देखेगी जापान, उनके पास एक चार्ट होता है ड्यूटी स्ट्रक्चर का, वो देखेंगे कि फर्नीचर पे ड्यूटी कितनी है जापान में, वो कहेंगे अच्छा 10%, कार्गो इज वर्थ फॉर एग्जाम्पल 50 लाख रुपीज, उसका 10% 5 लाख रुपए, प्लस सम मार्जिन 50,000, प्लस उनकी फीस। फीस में वेरी एज मच एज करीबन उनकी 1 करोड़ पे मेरे ख्याल 35,000 रुपए फीस होती है, और अप टू 3 करोड़, अप टू 1 लाख रुपए तक फीस जाती है। हालांकि नोटिफाई उन्होंने अपनी वेबसाइट में कोई 60-65 हजार रुपए के आसपास कराए, बट एक्चुअली जब उसको हम पे करने जाते हैं उसमें जीएसटी और सारे चार्जेस भी लगते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रकार से जो आपका जो ड्यूटी होगी वो आपकी रह जाएगी, कितनी हो जाएगी? लगभग 1 लाख रुपए। आपने 1 लाख रुपए पे किए, और उसके बाद में माय रिस्पेक्टेड फ्रेंड, दे विल इशू यू एटीए कार्ड। वो दो तरीके के आपको सेट देंगे। ये पहला सेट होगा जो ग्रीन कलर का होगा, जो कि कवर पेज होगा। दूसरा होगा येलो कलर का, जो फॉइल्स होते हैं, येलो फॉइल्स। तो ये फॉइल जो है ये आपके यूज होंगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ, जो है ना, जब आप इसको लेवरेज करेंगे। और ग्रीन जो पहला वाला फॉइल होगा वो बेसिकली स्टाम्पिंग के लिए होता है। सो यू अप्लाई इट, दे इशू यू, एंड दे आल्सो चार्ज यू सम फीस, और आपसे एक कॉपी ऑफ इनवाइस लेते हैं वो, कि कार्गो है क्या, कार्गो का नेचर क्या है। सो कार्गो का नेचर लेंगे आपसे, पैकिंग लिस्ट लेंगे आपसे प्यारे मित्रों। इसके अलावा वो आपसे लेंगे एक एप्लीकेशन लेंगे, और कुछ फीस लेंगे। ये 4-5 स्टेप है उनके। हाउ टू गेट एटीए कार्नेट में आप देख सकते हैं आराम से। और उसके बाद में आपको काउंटर फाइल इशू हो जाएंगे, जो कि आपके लेवरेज होंगे दोनों कंट्रियों में। इसके अलावा आप ले सकते हैं ट्रांजिट, ट्रांजिट के लिए अगर आपको कुछ और मल्टीपल कंट्री जाना है, तो उसके लिए आपको ट्रांजिट फाइल भी मिल सकते हैं। माय रिस्पेक्टेड फ्रेंड्स, देन यू विल फाइल योर शिपिंग बिल, यू विल गिव वन फाइल, येलो वाले में से एक फाइल आप इंडियन कस्टम को देंगे। इंडियन कस्टम आपका सामान एक्सेप्ट कर लेगा एक्सपोर्ट के लिए। अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जैसे कि आइटम एक्सपोर्ट के लिए फ्री हो, अगर रिस्ट्रिक्टेड है तो डीजीएफटी से रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस इशू होना चाहिए। अगर वो स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज का आइटम है मेरे प्यारे मित्रों, तो उस केस में उसमें आपको जो 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 कैनलाइजिंग एजेंसी है उसकी उसमें फॉर्मेलिटी ये पूरी होनी चाहिए। आप समझे नहीं समझे? तो ये आपको सारी फॉर्मेलिटीज देखनी पड़ेंगी एट द टाइम ऑफ यू से डूइंग कंप्लीटिंग ऑल दिस फॉर्मेलिटी।
देन यू फाइल इट इंडियन कस्टम से, तथास्तु, वेलकम, आपका स्वागत है, आप इस सामान को ले जा सकते हैं. सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी एक्सप्लेन इन इंग्लिश आल्सो, बिकॉज सम ऑफ यू मे बी not very well conversant in Hindi. So you will apply to FICCI for issuance of ATA Carnet. When you apply, there are certain formalities which you as an individual has to complete. What those formalities are? Number one, ध्यान से सुनना. Number one, you have to file an application to FICCI, which you just click on Google, type FICCI ATA Carnet, open the website, go downside, scroll downside, बीचों बीच में in between it is written how to get ATA Carnet. Click on that, a page will open before you. So my respected friends, where there is a application which you have filled up is require basic information, very very basic information, which who you are, where you are going, or what cargo you are taking, what is the value of that cargo, how many days you will spend there, something like that. So you have to provide to. In addition to that, my respected friends, you have to provide copy of invoice, commercial invoice, copy of पैकिंग लिस्ट कार्गो का डिस्क्रिप्शन, डिटेल, डायमेंशन, साइज, वेट, वॉल्यूम, सारी डिटेल आपको यू हैव टू गिव इट इन द पैकिंग लिस्ट. And these are the two documents plus some fee, and there is a chart for fee which has been provided up to 1 crore rupees, some 36,000 rupee plus GST you have to pay. In case you are taking it for up to 3 crore rupee, it will be some around 1 lakh rupee including the amount of GST. Some 65,000 rupee will be the amount of charges plus some GST amount you have to pay. So you paid around 1 lakh rupee up to 3 crore rupee of cargo, and above that case to case basis. If you are member to FICCI, my respected friends, you will get a discount. आपको discount मिलेगा, आपको discount मिलेगा, और उस discounts with that discount, my respected friends, you can, what we can say, you can make your business process or your business operations even more cost effective. So those who are member to FICCI will be entitled to discount. 20% के आसपास discount है, which you will get from office of FICCI. So dear friends, if you complete these formalities, they will issue you two type of sets. First will be in the green color, which is basically a what we call as a कवर फॉयल, और फिर उसके बाद काउंटर फॉयल होंगे येलो कलर के, जो कि ट्रांजिट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रांजिट विच विल बी लेवरेज्ड. इन एडिशन टू दैट, you can have a transit files also, depending on the number of country you will touch. You can have a multi-country ATA Carnet also. So we have so far discussed what is ATA Carnet, to whom to apply and how to apply. अभी इसके बहुत सारे uses है, we will discuss, and we would like to understand how effectively and how beautifully we can use it for the growth and development of the nation. So we have so far covered what is ATA Carnet and who issues it. My dear friends, now let us say, so this exporter who come from Saharanpur will file shipping bill, complete formalities, cargo is clear. Now he will take his cargo to Tokyo. When he land in Tokyo, he will have to file bill of entry. इसको bill of entry file करना पड़ेगा, या custom declaration. In Japan it is a custom declaration. He will file custom declaration in order to complete import formalities. Import formalities को complete करना है. In order to complete the import formalities, he has to do some documentation. Like in India, if you are importing, you file bill of entry with Indian customs. It must be filed within 2 days. Otherwise, you will have to pay certain charges, penalty, 5,000 rupee per day. On third day, fourth day, आपको 10,000 rupee. Fifth day, 25,000 rupee, and some case-to-case other charges. Plus, you pay damage and detention. Similar fashion, you must be very alert to clear your cargo at destination. Moment you land there, file bill of entry with respective customs. Customs may be Tokyo Customs, Dubai Customs, or UK Customs, EU Customs, depending where your cargo, you are taking your cargo. So in this case, a Saharanpur based exporter is taking its cargo to, कहाँ पे लेके जा रहा है? Tokyo. प्यारे मित्रों, then they will check it, and they will have a second counterfile of yellow paper. Second counterfile. It means they will not charge duty. In earlier case, Gupta was paying 40 lakh rupee duty in Dubai.
If he go with ATA Carnet, he need not to pay 40 lakh rupee as duty. Why? Because Dubai, UAE, and Japan are member to ATA Carnet. ATA Carnet allow duty-free import of goods for the purpose of trade promotion, buyer-seller meet, trade exhibition, and other such purposes wherein the opportunities for business become much higher. Your ability to engage in global market become much higher. So dear friends, now he clear his cargo, take it to venue, and he must take it to venue. Please, he must take it to designated bonded area because the goods remain under bond under ATA card. It does not mean he start roaming around in whole of Japan with those goods. No, 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 no. He has to take those goods to what we call as to a designated जो एरिया जहां पर बायर सेलर मीट या यहाँ पर एग्जीबिशन या trade fair. In case of Delhi, it will be Pragati Maidan. So when he clear his goods from New Delhi airport, he brings them to what we call as to Pragati Maidan and where he will sell it. My respected friends, once he take his cargo, he can open his cargo, can have his stall where he can showcase his goods and he can book orders and he can book volumes of orders without any hesitations. When he books order and for future and he can do tie-ups with distributors, wholesalers, he can set up his own franchisee with the prospective clients which he finds in those markets and then he can participate for 15 days 20 days or 21 days in that particular exhibition उस exhibition में participate कर सकते हैं and then he can sell that cargo also if he so desire but what are the formalities to sell it please listen them very carefully मेरे प्यारे मित्रों सामान पहुंच गया जापान जापान जाके सामान खुल गया नुमाइश में दिखा दिया गया अब आप नए डिस्ट्रीब्यूटर असाइन कर सकते हैं आप अपनी फ्रेंचाइजी सेटअप कर सकते हैं आप वहाँ लोकल बायर्स रिटेलर्स ढूंढ सकते हैं आप सभी से एग्रीमेंट अपना साइन कर सकते बिकॉज पीपल विल कम व्हेन दे कम एंड सी योर कार्गो जब वो आके आपका कार्गो देखते हैं किसी एग्जीबिशन में एंड इफ दे लाइक इट एंड दे लव इट एंड if it is as per their choice your ability to sell that become much higher my respected friends फिर आपने उस एग्जीबिशन में उस सामान को दिखाया उसके जो भी नॉर्मल चार्जेस होंगे दैट यू हैव टू पे फ्रॉम योर ओन पॉकेट और यू कैन गेट देम कवर फ्रॉम ए स्कीम वो स्कीम क्या है एमडीए मैं भी थोड़ी देर में उस पर भी आता हूँ वो गवर्नमेंट आपको एक एमडीए स्कीम देती है उसको भी हम साथ साथ ले लेंगे एटीए कार्ड के साथ सो दैट योर टोटल फंक्शन बिकम far more cost effective. But as of now, we believe this Saharanpur based exporter is paying these expenditure from his own pocket. So dear friends, he book his order, get usually various customers, and at the end he has two choices: to bring back the cargo to Saharanpur or to sell the cargo. These are the two choices he can make. If he sell the cargo, he must pay custom duty of Japan. So he cannot sell the cargo at exhibition. प्यारे मित्रों, he will bring that cargo, he will bring that particular consignment back to custom station in Tokyo where he has cleared his goods and will move an application for custom clearance of cargo to the Japanese custom. देखिए पूरा प्रोसेस समझिए फिर दोबारा से पूरा प्रोसेस समझिए somebody from Saharanpur want to explore the possibilities for sale of furniture in lucrative market वो दो छोटा बिजनेसमैन है वो सोच रहा है कि अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया जाए डाइवर्सिफाई किया जाए ग्रोथ की जाए बिजनेस को आगे लेके जाया जाए बिजनेस को प्रमोट किया जाए और वो देखना चाहता है तो वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो एक एटीए कार्नेट जिसके बारे में मैंने बताया ड्यूटी फ्री पासपोर्ट है वो लेता है कहाँ से फिकी से फिर वो दिल्ली आता है फिर वो कस्टम क्लियरेंस करता है फिर सामान बाय एयर और एट द कॉस्ट एंड एक्सपेंस ऑफ जेंटलमैन कौन सहारनपुर का एक्सपोर्टर सामान उनकी कॉस्ट और एक्सपेंडिचर पे पहुंच गया कहाँ पहुंच गया जरा ध्यान से सुनो सामान पहुंच गया टोक्यो अब उसने पार्टिसिपेट किया बायर सेलर रिटेलर ढूंढ लिए डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ लिए लोकल बायर हु लव्स हिज कार्गो और बिजनेस की उसने सारी पॉसिबिलिटीज को टैप कर लिया एट द एंड ही हैज टू चॉइसेस उसके पास दो चॉइसेस हैं टू ब्रिंग बैक द कार्गो इफ ही ब्रिंग बैक द कार्गो he has to incur the cost of
फ्रेट, फिर जहाज बुक कराना पड़ेगा या शिपिंग लाइन बुक करानी पड़ेगी, फिर वो कार्गो दिल्ली आएगा, फिर दिल्ली उतर के, एक तो मैं बिजनेस करने गया, एक्सपोर्टर हूँ, डॉलर में खेलता हूँ, फिर मैं एक और फिर आके दिल्ली में सामान क्लियर कराऊंगा। आई हैव टू स्टे एट महिपालपुर समवेयर फॉर 2-3 days, माई कार्गो विल बी क्लियर्ड, आई लैंड फ्रॉम ए फ्लाइट, देन माई कार्गो विल बी ब्रॉट टू, आई मीन सेलेबी एरिया, देन इट विल बी क्लियर्ड, देन आई विल बुक ए डीसीएम टोयोटा या कोई कंटेनर, देन आई विल स्टफ इट और फिर उसको सहारनपुर गाड़ी में लेके जाऊंगा। it is too tiring process. So sometime what happen? The ATA carnet exporter sell their cargo in the country of what we call it destination. In this case जापान, तो वो जापान में अपना कार्गो बेचना पसंद करेगा, तो वो क्या करेगा, बायर ढूंढ लेगा, he will try to find out buyers. At the end of the exhibition, he will take his cargo to custom station because he cannot sell this cargo in trade fair. Exhibition at the point, no, वहां पर उस सामान को नहीं बेचा जा सकता। सामान को बेचेगा कहाँ? सामान को बेचने के लिए ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा, फिर दोबारा से सामान को ले जाएगा उसी कस्टम डिपो पे, कहाँ पे, जहाँ पे सामान क्लियर हुआ था एट द, और जाके रिक्वेस्ट करेगा कस्टम जापान से कि आई वांट टू सेल दिस कार्गो, व्हाट इज द नेचर ऑफ ड्यूटी विच आई हैव टू पे, सो ही विल से बेसिक ड्यूटी प्लस आई मीन जीएसटी प्लस सम सेस, जो भी चार्जेस उस कंट्री के होंगे, दैट जेंटलमैन विल पे। नाउ कार्गो इज वर्थ फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपी, ड्यूटी पे करने के बाद हो गया 75 लाख रुपी, somebody is willing to pay me 80 लाख रुपी, आई मेक ए प्रॉफिट ऑफ 5 लाख रुपी, प्लस मेरा पैसा हरा हो जाएगा सारा, मेरा पैसा निकल आएगा बिजनेस से, आई विल बी एबल टू सेल दिस कार्गो, जो कि अब एग्जीबिशन में पुराना हो चुका है। पर एक वहाँ बायर है, लेट अस से कोई एक कंपनी है, दे लव माई कार्गो वेरी मच एंड दे से कि ये कार्गो तो हमें रखना ही है, और सम बायर, सम इंडियन हु इज स्टेइंग देयर, ही लव्स दोज कार्विंग वाला फर्नीचर, कार्विंग वाला सोफा, कार्विंग वाला टेबल, उसको इन चीजों से लाइकिंग है, लव है, अफेक्शन है। प्यारे मित्रों, अगर इस तरीके से हुआ तो फिर वो अपने कार्गो को ड्यूटी पे करेगा, क्लियर करा लेगा, क्लियर कराने के बाद में उस कार्गो को बेच देगा, अपने पैसे अकाउंट में ले लेगा, प्रॉपर बैंकिंग चैनल से, थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल पैसा ट्रांसफर कर देगा इंडिया अपने अकाउंट में, और पैसा ट्रांसफर करने के बाद में ही विल टेक ए फ्लाइट कम बैक, आके अमेंडमेंट फाइल कर देगा सेक्शन 149 कस्टम्स एक्ट का और सेक्शन 154 कस्टम्स एक्ट का, डिफाइन करते हैं कि आप अपने शिपिंग बिल में अमेंडमेंट फाइल कर सकते हैं, क्योंकि अब वो पैसा लेके आ रहा है। When he has gone out of India, he declared that he will never bring the foreign exchange, he will bring back the goods. But now he is doing the reverse. He is not bringing back the goods, my respected friend, he is bringing back the money. Now he need to claim his export incentive also. What those are? Duty drawback, MEIS benefit, although from 1st of September, a lot of restrictions had been put, it will be phased out. New scheme which is known as ROTEP, जो remissions of taxes and duties on exportable products has been announced by government of India, वो इसकी जगह स्कीम आ रही है। प्यारे मित्रों, वो अमेंडमेंट फाइल करेगा, उसमें एक टाइम होता है, when he file it, it takes some time because it require an amendment and require approval of various layers of custom officers। 15 दिन में अगर ये काम कंप्लीट हो गया, then he can realize his foreign exchange and have a authority to get EBRC। Moment he get EBRC, he can claim all export incentives। ये पहला प्रोसेस मैंने पूरा का पूरा प्रोसेस, द होल प्रोसेस विच ATA Carnet, how it is leveraged in initial 45 minutes, very briefly I have discussed it। I still have 1 hour 15 minutes with you। I know I have so much to discuss, but बेसिक ड्राफ्ट मैंने आपके साथ अभी तक डिस्कस किया है। मैं इस ड्राफ्ट को 5 मिनट में एक बार पूरा फिर से रिपीट कर दूं, जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है, देखिए, और फिर मैं दोबारा एग्जांपल्स लेके कैसे लेवरेज को, इसको लेवरेज कैसे, व्हेन आई से लेवरेज मींस कैसे इसके फायदे उठाए जाते हैं। माय रिस्पेक्टेड फ्रेंड्स, ATA Carnet is a admission temporary admission। It is an international it is an instrument which is used in international trade, foreign trade, for duty free export as well as duty free imports। This is issued in India by a body authorized by Government of India। It is FICCI। FICCI is a sole national issuing and granting association। यहाँ सोल का मतलब अंडरलाइन कर लो, सोल का मतलब सोल नहीं है, सोल है नहीं है कैसे,
देयर आर सर्टन एटीए कार्नेट्स व्हिच आर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कुछ एटीए कार्नेट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी इशू होते हैं, जैसे इंडियन कॉमनवेल्थ टीम इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन कॉमनवेल्थ गेम, दे विल नॉट गो टू फिक्की। ये सरकार का काम है अपने स्पोर्ट्स को, एडवेंचर को, टूरिज्म को बढ़ावा देना। तो कौन इशू करेगा? एक डीजीएफटी में ज्वाइंट डीजीएफटी, दे विल ऑथराइज वन डीजीएफटी एज ए ऑफिसर, नोडल ऑफिसर टू इशू इट। गवर्नमेंट का जॉब है, गवर्नमेंट का बिजनेस। बट फॉर ऑल कमर्शियल ट्रांजेक्शन वेयर वी engage in, you engage in, we have to go to FICCI. We go to FICCI. FICCI mandates certain procedure. It is online and manual as well. Online, in order to complete online, first open the FICCI ATA carded website. First get registered. It is a 1 or 2 minute job. You require your email. They will generate a password. Then what we call a verification email comes. You authenticate. If you are a genuine person, then they will allow you access, and then you can apply. There are four minimum formalities that you have to complete. First, you have to file an application. Number two, you have to sign a bank guarantee. Third, you have to give packing list and a copy of commercial invoice. And fourth, you must pay fee. Fee will be as per as per the amount of your export transactions. ये चार चीजों का बहुत ध्यान रखना है। So प्यारे मित्रों, you file an application where you give the detail, which country you are going, how many days you will stay, what is the location, what is the port of, I mean departure, what is the port of destination, इस प्रकार की basic detail आपको उसमें, and who you are, एक letter of authority from your firms आपसे चाहिए होगा, who to whom the firm has authorized. Now my export company may authorize me, your export company may authorize you. इस तरीके की डिटेल होगी उसमें। और फिर साथ में कॉपी ऑफ इनवाइस होगा जिसमें सारी डिटेल होगी, कार्गो की वैल्यू ऑफ कार्गो होगी, उसमें पोर्ट ऑफ डिपार्चर, पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, वेसल नंबर, आई मीन इनको टर्म्स क्या होगी, पेमेंट टर्म्स क्या होगा, कंसाइनी कौन है, कंसाइनर कौन है, आईसी नंबर किसका, ये सब डिटेल एक इनवाइस में होती है। लेटर ऑफ अथॉरिटी दे दिया आपने, वो फिलअप कर दिया। इसके अलावा प्यारे मित्रों, कुछ आपको एक बैंक गारंटी देनी है, which is equivalent to amount of duty which will be you have to pay in country of import, या उसके थोड़ा सा ज्यादा फिक्की in order to cover those expenditure, वो आपसे एक ड्यूटी लेते हैं। प्यारे मित्रों, फिर आपको एटीए कार्ड इशू हो जाती है फिक्की से, इशू हो जाती है ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन, सेम डे भी इशू, सवेरे अप्लाई करो शाम को भी इशू हो जाती है, लेकिन यूजुअली यू कैन टेक 24 आवर टाइम्स टू गेट इट इशूज। अगर बीच में सैटरडे संडे आ गया तो ऐसा हो सकता है आपने फ्राइडे शाम को अप्लाई की तो आपको मंडे को सवेरे दोपहर तक मिल पाएगी, क्योंकि सम लिटिल बिट internal documentation process they also do. If you are a member of ICCI, you are entitled to discount of 20%. Then they will issue you ATA card. It is issued in a file, green file and yellow file. ये आपको फाइल्स में इशू हो जाएंगी, जो फिर आप जाएंगे इंडियन कस्टम्स के पास, अपना शिपिंग बिल फाइल करेंगे या बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल करेंगे डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। और प्यारे मित्रों, फिर इसको आप लोग इंडिया की कस्टम फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करेंगे। जब इंडिया की कस्टम फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करेंगे, यू मस्ट बी अवेयर विद द फैक्ट दैट ऑल जो ट्रेड पॉलिसी का प्रोसीजर है, जैसे इफ आइटम इज फ्री नो प्रॉब्लम, इफ इट इज रिस्ट्रिक्टेड देन यू मस्ट हैव ए लाइसेंस फॉर रिस्ट्रिक्टेड आइटम इशूड बाय डीजीएफटी, जो कि आया निर्यात फॉर्म सीरियल नंबर 2M या 2N, उन दो में दिया गया है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए, वो आपका इशू होना चाहिए प्यारे मित्रों। और जो भारत सरकार के नियम कायदे कानून है विज कंप्लायंस, वो आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। फिर आपने कार्गो बुक कराया, कार्गो आपका फ्लाइट से या सी से डेस्टिनेशन पहुंच गया, वहां इंपोर्ट के लिए आपने डॉक्यूमेंट दिया, बिल ऑफ एंट्री फाइल किया, और वहां पर एक सेकंड काउंटर फाइल दिया येलो जो कलर का होगा, और आपका माल क्लियर हो गया। क्लियर होने के बाद में आपने एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया, ऑर्डर बुक किए, लोगों को दिखाया, लोगों ने आपका सामान पसंद किया, कुछ चेंजेस रिकमेंड किए। ऐसा भी हो सकता है कि मुझे ऐसा डिजाइन नहीं ऐसा डिजाइन चाहिए, और उसके बाद में आपने वो सामान कंटेनर में भर के वापस ले आए, लाके फिर आपने फोर्थ काउंटर फाइल दिया। थर्ड काउंटर फाइल वहां से चलते वक्त, फोर्थ काउंटर फाइल यहाँ पर आपने आते वक्त दिया, और फिर आपका सामान वापस आ गया, या तो आप सामान वापस ला सकते हैं। सो जाते वक्त पहला काउंटर फाइल, सेकंड काउंटर फाइल जब वहां यूज होगा, थर्ड काउंटर फाइल जब वहां से डिपार्चर होगा, फोर्थ काउंटर फाइल, फिफ्थ काउंटर फाइल आपको देना है फिक्की को कि मैं आई हैव गॉन देयर एंड आई हैव ब्रॉट द सेम कार्गो। कस्टम उसको ऑथेंटिकेट करके देता है
कि दिस कार्गो हैज गॉन एंड कम बैक। मैं सामान ले गया, उतने ही डॉक्यूमेंट से मैं सामान लेके आ गया, उसकी एंट्री आपके साथ साथ जो ग्रीन फॉइल आएगा आ जाएगी। प्यारे मित्रों, ये होने के बाद में फिक्की विल इशू यू डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। आपका बैंक गारंटी का जो बैंक गारंटी है वो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको वापस हो जाएगा, बिकॉज यू हैव एग्जीक्यूटेड ए बैंक गारंटी। नाउ व्हाट इज द बेनिफिट? Earlier cases, gentleman Gupta was paying duty which can never be recovered. Once you pay duty to Dubai custom or Japan custom or other custom, you cannot recover back. The duty paid to a foreign country, it is very tough to recover. It is impossible to recover. That duty has gone to exchequer of that government. Near impossible. It is near impossible to get it. But here, you do not pay. You do not pay number one in money. No, 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 no. पैसा नहीं देते आप। प्यारे मित्रों, क्या देते हो? बैंक गारंटी। माने सिर्फ एक बॉन्ड दिया, बैंक गारंटी दी। किसको दी? फिक्की को, जो जाते वक्त देती, आते वक्त अपने डिस्चार्ज ले लिया उसका। सामान गए, सामान ले आए। सामान तो गुप्ता जी भी लेके गए थे, सामान लेके गए, वहां भी ड्यूटी दिया और सामान वापस भी ड्यूटी दिया। लेकिन यहाँ भी ड्यूटी नहीं दिया, वहां भी ड्यूटी नहीं दिया, फर्नीचर अपना वापस लेके आ गए, देन यू कैन टेक इट। बट इन द होल प्रोसेस दिस सहारनपुर बेस्ड एक्सपोर्टर get a huge amount of new business, so as to expand and diversify his business, understand the new design and pattern of Japanese people or Dubai people or American people or European people, and he can take his business to next level. पहला प्रोसेस कंप्लीट कर दिया मैंने 5 मिनट में। दूसरा, he sells it. When if he sells it there, he must pay duty there. If he do not pay duty, it will be a problem. क्या problem होगी? I'll discuss now only. My respected friend, he paid duty to Japanese custom, clear the cargo, sell it, recover his money. He can make profit, he can make losses, he can make reasonable profit, he can make exorbitant. But custom will charge duty on the declared value. For example, declared value is 50 lakh. He sell the cargo in 1 crore rupee. So will he pay duty on 1 crore or 50 lakh? 50 lakh. The Japanese custom is concerned with the declared value at the time of clearance as per customs determinations of import value. इंडिया में रूल्स हैं, कस्टम वैल्यूएशन डिटर्मिनेशंस ऑफ इंपोर्ट वैल्यू रूल्स 2007, जिसमें 6 टायर मैकेनिज्म बताया गया। ये रूल्स आर डिजाइन्ड ऑन द बेसिस ऑफ डब्ल्यूसीओ की गाइडलाइंस के हिसाब से ये रूल डिफाइन किए गए हैं। प्यारे मित्रों, ये रूल 50,000 पे थी। अब फॉर एग्जांपल वो सामान बिका 25 लाख का, क्योंकि सामान थोड़ा डैमेज भी हो गया था। उसने सोचा कि लेके जाऊंगा वापस, कॉस्ट है, फ्रेट है, ये है, बहुत ऐसा कुछ उसके दिमाग में आया। एंड ही वांट डू नॉट वांट टू ब्रिंग बैक द कार्गो, ही वांट टू सेल इट, बट कार्गो केवल 40 लाख में बिका। कस्टम कह रहा मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं है, चाहे 40 लाख में बिके, चाहे 1 करोड़ में बिके, चाहे 75 लाख में बिके, मुझे ड्यूटी से मतलब है। डिक्लेयर्ड वैल्यू कार्गो की है कितनी है? डिक्लेयर्ड वैल्यू है प्यारे मित्रों कितनी है? 50 लाख। 50 लाख पर आपको ड्यूटी देनी होगी, और आप ड्यूटी दी, अपना पैसा रिकवर कर लिया। मोमेंट यू रिकवर योर मनी, यू ट्रांसफर दैट मनी थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल। ये प्रॉपर बैंकिंग चैनल का मतलब बैंक के थ्रू, कैश मत लेके आओ। फेमा के रूल्स हैं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के, वो कहते हैं कि इफ यू आर ऑन ए बिजनेस वीजा $50,000, और अगर वैसे हो तो $10,000। इसलिए योर कार्गो में वैल्यू में भी वेरी हाई। डू नॉट ब्रिंग इट इन योर ओन पॉकेट। खुश मत हो जाना पॉकेट में पैसे लेके चल पड़ो। नो 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 नो, इट विल बी ए प्रॉब्लम फॉर यू, यू विल बी कॉट एट एयरपोर्ट, दैट विल बी अ वायलेशन ऑफ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स वर्ल्ड ओवर। माय रिस्पेक्टेड फ्रेंड्स, पैसा प्रॉपर बैंकिंग चैनल से यू ट्रांसफर इनटू इंडिया, देन यू कम, यू फाइल एन अमेंडमेंट अंडर सेक्शन 149 ऑफ द इंडियन कस्टम्स एक्ट, 148 या 149, आप कस्टम्स एक्ट में इस सेक्शन में फाइल करेंगे। और देन योर अमेंडमेंट शिपिंग बिल इज अमेंडेड फ्रॉम ए ड्यू, क्या था वो पहले जो फाइल किया, शिपिंग बिल अंडर अंडर ड्यूटी फॉर ड्यूटी फ्री गुड्स, now it is converted to shipping bill under claim of duty drawback. Now you become entitled to duty drawback, MEIS benefit। अब इसकी जगह नई स्कीम आ जाएगी, other incentive and benefit under advance authorization, DFIA, EPCG। अगर आपके कोई एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है, those all benefits you become entitled। प्लस अगर कोई स्कीम है, जिस क्या थी वो इंटरेस्ट सबवेंशन की, अगर कोई स्कीम है, you become entitled to EBRC, which may be counted for your status holder and other purposes. So you become entitled to all government incentive, all government benefit, everything if you do business like this। नॉर्मल ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, पहला ट्रांजैक्शन। अब आ जाओ सेकंड ट्रांजैक्शन, लेवरेजिंग की बात शुरू हो गई। मैंने आपके 5 मिनट जानबूझ के रिपीट किए ताकि जो लोग बाद में ज्वाइन किए हों
should be able to join us in a short period of time. My respected friends, sometime we take this cargo and want to go to multi countries. So, multi countries, you must be aware with the fact that world over, large number of free trade agreements are being signed और बहुत सारे रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग बने हैं जैसे आशियान नाम सुना होगा आशियान आशियान इज ए रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग ऑफ 10 कंट्रीज 10 कंट्री हैं जिसमें सिंगापुर मलेशिया इंडोनेशिया म्यांमार कंबोडिया लाओ वियतनाम ब्रुनेई और सिंगापुर 9 हो गए और शायद एक कोई और बच्चा मुझे याद नहीं आ रहा ये 10 कंट्रियों का एक समूह है हाँ फिलीपींस आ गया याद फिलीपींस थाईलैंड के बाद फिलीपींस ये 10 कंट्रियों का समूह है जो कि रीजनल इकोनॉमिक सिमिलर फैशन 27 कंट्री यूरोपियन यूनियन पहले 28 था यूके निकल गया उसमें से 27 कंट्री की रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग है ईयू ऐसे ही साकू साउथ अफ्रीका कस्टम यूनियन साउथ ये 5 कंट्री है कौन कौन से साउथ अफ्रीका है नामीबिया है और क्या है वो क्या कहते हैं उसका नाम बोस्वाना है और मोजाम्बिक है और एक इस्वानी का पहले नाम स्वाजीलैंड था अभी उसका नाम इस्वानी हो गया छोटा सा कंट्री है बहुत छोटा सा इस्वानी इज ए कंट्री विद इन जो अगर आप देखा जाए तो वो चारों तरफ से कवर्ड है विद इन अफ्रीका के अंदर ही पड़ता है इस्वानी बहुत छोटा कंट्री है ये 5 कंट्री मेंबर है साकू के ऐसे ही ईस्ट अफ्रीका कम्युनिटी 5 कंट्री है केन्या युगांडा रवांडा ब्रुंडी तंजानिया ऐसे दुनिया भर में साफ्टा है ना इस तरीके से नाफ्टा इस तरीके से बहुत सारी और मर्कोजूर ऐसे बहुत सारे रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग है नाउ लेट मी सेट द कॉन्टेक्स्ट फर्स्ट हाउ टू लेवरेज इट नाउ देयर इज ए जेंटलमैन हिज नेम इज his firm is based in Chennai. He want to expand and diversify his business in Europe, and he want to participate in multiple trade fair. Multiple trade fair. One will be in Spain, one will be in Italy, one will be in क्या कहते हैं in Germany, one will be in France, and this way four events he want to participate. Can he take his cargo for 4 countries? I say yes. आप इन 4 कंट्रियों के साथ एक ही बार में सामान ले जा सकते हैं फर्स्ट यू टेक योर कार्गो टू 1 कंट्री ब्रिंग बैक कॉस्ट है इधर इज ए कॉस्ट एसोसिएटेड टू ट्रांसपोर्ट योर कार्गो एंड ब्रिंगिंग इट बैक सो दिस चेन्नई बेस्ड एक्सपोर्टर वांट टू टेक हिज कार्गो टू जर्मनी फर्स्ट फ्रॉम देयर ही वांट टू गो टू फ्रांस फ्रॉम फ्रांस ही विल गो टू स्पेन फ्रॉम स्पेन ही विल कम टू इटली and then his season will be over for of 2 months and then he want to come back he identify 4 major trade fair and these trade fair are not normal trade fair these are I mean either they are listed in list of important trade fair ITPO or other list हर एक ऐसा नहीं कुछ छोटी सी नुमाइश हो उसमें भी ATA कार्ड इशू हो जाए ऐसा नहीं FICCI checks it must be an trade fair of significance when I say significance it means प्यारे मित्रों ये ITPO या कहीं और से रजिस्टर्ड हो सो माय रिस्पेक्टेड फ्रेंड्स ये ट्रेड फेयर 4 हैं सीक्वेंस है एंड ही अप्लाइड एंड व्हेन ही अप्लाई इट जस्ट मेक वन एडिशनल रिक्वेस्ट टू FICCI टू इशू हिम ट्रांजिट passes क्योंकि ही विल स्टार्ट फ्रॉम जर्मनी विल गो टू कहते फ्रांस although it is a free trade area it is a common market it is a custom union it is a economic union सब कुछ सेम है पर ऐसा नहीं है जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाओगे आप कार्गो की डॉक्यूमेंटेशन नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन होता है क्योंकि दे मेंटेन देयर रिकॉर्ड ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट जर्मनी भी अपने एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का रिकॉर्ड रखता है कि मेरा कितना एक्सपोर्ट हुआ कितना इंपोर्ट हुआ सो देयर इज at a border check post a small piece of paper for the purpose of statistical record they have to maintain and if this cargo is going for duty free purpose accordingly transit pass is required between Germany and France very I mean not more than 10 minutes job by for a truck which is carrying it or any mode of transport it's not because it's a free area but still for the purpose of statistics collection a a system within Europe has been maintained or has been designed wherein they maintain their statistical record. Otherwise, how they will calculate 72% is intra-Europe trade? How they will calculate their statistics of import and export? How much we are exporting, how much we are importing?
So your cargo will first you participate as we have discussed. I need not to explain again and again. जैसा कि आपने पहले एक बार यहाँ से ATA Carnet, you go with the ATA Carnet, you participate hypothetically in Frankfurt. In Frankfurt, there is a mega show of engineering items, which are to be transported by this Chennai-based exporter. You take this cargo to कहाँ पे? Frankfurt. You participate in a उसको कहते हैं मैसे, Frankfurt मैसे. You participate in Frankfurt मैसे and you showcase your engineering items. You book your order. You find new buyers. You find new distributors. You find new wholesalers. You find new retailers. You find business partners. You know, for prospective investors. I mean, you make business, whatever it may be. You get a new partner who is willing to do business and who want to do joint manufacturing, assembling, whatever it may be. I mean, that's a separate story. So finally, you want to take your cargo from here to France. Only additional requirement is a transit pass. So when you apply for multi-country, my sincere request to you is that you must apply to Picky also for transit passes, number of transit passes that you require. Since it is a one country, it is a one economic union, one kind of tariff, one kind of trade policy. So you need not to go for separate documentation. Only transit files are required. In other cases, maybe procedure is little different. I'll come to that later. My respected friends, you take your cargo in France. Now for 15 days, you participate in Paris or in Lyon, which is an important city of France, or in Marseilles. You participate in Marseilles in a trade fair, and from there you go to Spain. Spain may you go to, for example, in one city of Spain, Barcelona. There you participate. And from there, my respected friend, you come to Milan. In Milan, you participate. And this take 15 days of trade fair plus some gap of commuting. It take 2 months time, but you are able to cover different major markets. Major markets. सबसे बड़ी market, major सबसे बड़ी economy, Germany. फिर France, फिर Spain. Various parts you are able to cover. Major ports you are able to cover. And then from Milan, you bring back this cargo without paying duty in India, without paying duty in Europe. This is called leveraging. So you can make additional business by leveraging your ATA Carnet for multi-country, multi-country trade fair and exhibitions. This is I would like to share. Let me speak in Hindi also for those who can understand Hindi better. मेरे प्यारे मित्रों, आप विभिन्न देशों में भी ATA कार्नेट के द्वारा आप अपने प्रोडक्ट को, अपनी वस्तुओं को, अपने सामान को ट्रेड फेयर में, एग्जीबिशन में, नुमाइश में दिखा सकते हैं, जिससे आपकी व्यापारिक संभावनाएं बढ़ेंगी, आपके बिजनेस करने की जो क्षमता है उसका ज्यादा विकास होगा, ज्यादा उत्थान होगा। प्यारे मित्रों, आपने सामान हिंदुस्तान से ले गए, कई कंट्री में पार्टिसिपेट किया, केवल एक एडिशनल रिक्वायरमेंट आपको फॉलो करनी है, आपको ट्रांजिट पासेस ले लेने हैं so that you can cover a multiple number of countries. Now, let us take another example. There is an exporter based in Bangalore. He want to participate in trade fair number 1 in Brasilia in Brazil, then Rio de Janeiro in Argentina, then Punta del Este in Uruguay, and finally in Paraguay and want to come back. 4 countries. These countries are member to Mercosur. Can he do so? Yes. Similar fashion, other regional economic grouping, you can participate in trade fair and exhibition. बताइए, क्लियर है? यहाँ तक आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ से थोड़ा सा और आगे. My respected friends, in addition to that, trade fair, this ATA carnets. Now let me to take to some another directions. When we leverage these ATA carnets, there are certain things which we have to keep in mind. For example, we take our cargo to not only for the purpose of trade fair and exhibition, we can take it for other purposes also. What those purposes are? Let me take an example. There is a gentleman, one among you, let us take his name. His name is Mr. Gupta. Mr. Gupta want to take, or Mr. Agarwal kar lete hain. Mr. Agarwal is working with a media company. He want to shoot an advertisement. इनको एक advertisement shoot करनी है, which will be shooted in, let us say, in Mauritius, because landscape is beautiful, बहुत greenery है और बहुत दूर समंदर का नज़ारा है, आसमान साफ है,
तो एक मोटरसाइकिल का इनको ऐड बनाना है 2 मिनट का, 1.5 मिनट का, जो कि हिंदुस्तान में बाद में डिफरेंट टीवी चैनल्स पे दिखाया जाएगा और उससे मोटरसाइकिल कंपनी की सेल बढ़ेगी। सो यू वांट टू शो उसमें बॉयज गर्ल्स मोटरसाइकिल चलाते हुए, और उसकी लैंडस्केप, जो पहाड़ होंगे, जो रोड होंगे, जो लैंडस्केप होगी, बहुत सुंदर आनी चाहिए। और मिस्टर अग्रवाल वर्क विद एडवर्टीजमेंट कंपनी एंड ही इज गिवन ए टास्क टू डिजाइन ए एड शूट। लो जी, he want to take 6 मोटरसाइकिल एंड 6 मॉडल्स फ्रॉम बॉलीवुड। बॉलीवुड से जो बाइकिंग के स्टार्स हैं, जो बाइकिंग यंग और भी हैं और थोड़े ओल्ड भी हो गए हैं, और बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं, मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, कि जो जॉय ऑफ राइडिंग क्या है, एडवेंचर क्या है, इंथुसियाज्म क्या है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, दे वांट टू शूट एन एड फॉर कंपनी होंडा। तो होंडा के डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगे, जैसे उसमें एक्टिवा भी होगा, एविएटर भी होगा, उसमें मोटरसाइकिल में उस करिश्मा मोटरसाइकिल डिफरेंट सॉर्ट ऑफ, उसमें पावर भी होगा, उसमें माचोइज्म भी होगा, उसमें ब्यूटी भी होगी, उसमें उसमें क्या कहते हैं, उसमें डिसेंसी भी होगी, डिफरेंट मॉडल्स व्हाट दे डिपिक्ट, and different set of models they will take. They will go to Mauritius, shoot an ad, and will bring back those motorcycles. Can they do so? Yes. By leveraging ATA card rate? Yes. So you can apply for ATA card rate. Otherwise, you will have to pay duty. Or sometimes these in Indian motorcycles are very cheap, costing $600 to $1,000. Let's say gentleman Agarwal has to shoot an advertisement for a company based in United States, जिसकी की मोटरसाइकिल $20,000 से शुरू होती है और $50,000 तक जाती है एक मोटरसाइकिल। क्या उसकी ड्यूटी ज्यादा होगी मॉरिशस में या कम होगी? बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि एक मोटरसाइकिल $50,000 की है, तो 6 मोटरसाइकिल $3 लाख की। $3 लाख को देखो जरा सा, उसके रुपए के हिसाब से ₹35 का बनेगा $1 में। $1 उसका मॉरिशस का, तो ₹35 के हिसाब से अगर 40 करते हैं, ₹40 के हिसाब से, तो बनेगा जाके वो 4 या 12, लगभग 1,20,00,000 का ट्रांजेक्शन। तो बहुत टू मच ऑफ मनी। उस पर ड्यूटी आएगी 30%, 40%, तो वो 40 लाख 50 लाख रुपए ड्यूटी होगी। इट विल बी ह्यूज वेस्ट। मिस्टर अग्रवाल इज ए वेरी स्मार्ट बिजनेसमैन। ही से आई नो अबाउट एटीए कार्नेट, ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट, मैं इसको लेवरेज करूंगा, इसको यूज करूंगा, क्योंकि इट इज ए ड्यूटी फ्री पासपोर्ट विच अलाउ मी टू टेक माई गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री विदाउट पेइंग एनी काइंड ऑफ, जोर से बोलो, ड्यूटीज। ओके माई रिस्पेक्टेड फ्रेंड्स, सो ही टेक्स दिस मोटरसाइकिल, शूट एन एडवर्टीजमेंट। ये एक एडवर्टीजमेंट वहां पर शूट करते हैं और उसमें कुछ 10-15 days ही स्पेंड देयर। ही टेक इट कार्गो टू मॉरिशस ड्यूटी फ्री, शूट एन एडवर्टीजमेंट एंड ब्रिंग बैक दोज कार्गो आइदर टू यूएस और टू इंडिया, डिपेंडिंग कहाँ का ये सामान है, और उस सामान को फिर ये वापस ले आते हैं। इस प्रकार से जेंटलमैन अग्रवाल विदाउट पेइंग इवन ए सिंगल पैसा shoot an advertisement by leveraging ATA Carnet, by displaying and demonstrating those motorcycles in the advertisement, which will be shown so as to promote the sales of a particular company। तो उस कंपनी की सेल को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। इस प्रकार से भी एटीए कार्नेट को इंटरनेशनल ट्रेड में यूज किया जाता है। क्लियर? आ जाओ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। माय रिस्पेक्टेड फ्रेंड्स, in addition to that, you can use this what we call as जो ATA carnet है, you can use it for the purpose of cultural event. Now you must be aware with the fact that lot of cultural show which happens requiring lot of musical instruments, lighting, sound show, and other electrical or electronic instruments involving, I mean, crores of rupees. Let us take an example. There is a there is a group of artists who want to participate in a what we call it वो शो होता ना, क्या उसका नाम है, फिल्म फेयर अवार्ड। और दे विल आल्सो शो देयर वहाँ पर उसका डांस, ड्रामा, म्यूजिक, उसमें फिल्म फेयर अवार्ड में, एंड इट इज लाइकली टू हैपन लेट अस से न्यूयॉर्क। लॉट ऑफ इंडिया डायस्पोरा भी है वहाँ पे। तो इंडिया से कोई, बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री से कोई, ऐसे मान के चलो कि एक डांस ट्रूप जाएगा, उसके साथ बहुत लाइट एंड साउंड शो और इंस्ट्रूमेंट्स और उनका जो पेरिफेरलिया और उनकी ड्रेसेस, बहुत कुछ चाहिए होगा साथ में, एंड दे विल गो एंड दे विल परफॉर्म ड्यूरिंग दिस फिल्म फेयर अवार्ड विच विल हैपन इन न्यूयॉर्क, एंड दे विल कम बैक, दे विल ब्रिंग बैक देयर कार्गो। और इस तरीके से कोई 5 ट्रूप या 6 ट्रूप जाएंगे। इट विल बी वन डे इवेंट वेयर प्राइजेस विल बी गिवन इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द lot of consumer and to make it a global event।
हम लोग अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए ऐसा अक्सर करते हैं। कैन यू टेक इट ये कार्नेट? यस। आप ऐसे म्यूजिकल के लिए, ड्रामा के लिए और ऐसी इवेंट्स के लिए आप अपने साथ एटीए कार्नेट ले जा सकते हैं। सो प्रोसेस रिमेन द सेम, इट विल बी इशूड, यू कैन टेक योर कार्गो टू कहाँ लेके जाएंगे? न्यूयॉर्क में लेके जाएंगे और वहां जाके आपने पार्टिसिपेट किया और फिर उसको वापस लेके आएंगे। Similar fashion, my respected friend, somebody want to come into India. Now, ATA carnet is not only used for export, it is used for import also. So, if somebody want to bring some cultural troop or some cargo in India, ताकि उसकी इंडिया में डिमांड को बनाया जाए, यू कैन आल्सो अप्लाई फॉर द पर्पज ऑफ इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट के लिए भी इशू होती है और जोर से बोलो इम्पोर्ट के लिए भी एटीए कार्नेट जो है इशू होती है। माय डियर फ्रेंड्स, इन एडिशन टू दैट, एटीए कार्नेट्स जब एटीए कार्नेट लेके जाते हैं तो आप अपना गुड्स तो लेके जाएंगे। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन और डेकोरेशन मटेरियल, बिकॉज यू हैव टू डिजाइन योर, क्या कहते हैं, आपको अपना डिजाइन करना है, क्या वो जो आपका जो जो प्लेटफॉर्म है, जो जहाँ पे आप अपना सामान रखेंगे, जो ट्रेड फेयर में, सो यू रिक्वायर सम डेकोरेशन मटेरियल विच मे बी सम फर्नीचर, सम लाइट्स, सम डेकोरेटिव लाइट, सम अदर थिंग्स, है ना, सम, इसके अलावा कुछ एडवर्टीजमेंट मटेरियल, पैम्पलेट, अगर हम जाते हैं, इफ वी गो टू एनी ट्रेड फेयर, कुछ हमें एडवर्टाइजिंग और डिमॉन्स्ट्रेशन मटेरियल भी चाहिए होता है, पब्लिसिटी मटेरियल चाहिए होता है, कुछ और हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइक जो जिससे कि हमारा डिस्प्ले होता रहता है सारा, वो सामान भी, या कुछ साउंड रिकॉर्डिंग या कोई फिल्म या कोई स्लाइड शो के लिए जो चलता रहेगा स्लाइड शो, या कुछ और ऐसे अपरेटस जो कि हमें चाहिए होंगे, हम उनको भी अपने साथ में ले जा सकते हैं। प्यारे मित्रों, इन एडिशन टू दैट, अगर हमें कुछ इंटरप्रिटेशन के लिए कुछ, क्योंकि लैंग्वेज इज ए बैरियर, किसी कंट्री में कोई डिक्शनरी, इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी या कुछ ऐसा अपराटस या कोई साउंड रिकॉर्डिंग या और कोई या ऐसा एजुकेशनल इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा, हम उसको भी साथ में ले जा सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ कल्चरल कैरेक्टर, और यू से और सम कॉन्फ्रेंस और सम कांग्रेस, एंड ब्रिंग इट बैक बाय लेवरेजिंग एटीए कार्नेट। सो एटीए कार्नेट को मैंने लगभग सभी एस्पेक्ट से आपके साथ डिस्कस कर लिया। जो यूजेज है एटीए कार्नेट के, वो बेसिकली इट कैन बी यूज्ड फॉर ट्रेड पर्पजेज, जैसा मैंने ज़्यादा यूज किया। इसके अलावा इट इज यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल, क्राफ्ट एग्जीबिशन, फेयर्स, सिमिलर शो और डिस्प्ले, जो कि कल्चरल हो सकते हैं, प्रॉफिट के लिए हो सकते हैं, नॉन प्रॉफिट हो सकते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको, आई कम फ्रॉम स्टेट ऑफ पंजाब। सो हमारा जब छोटे थे 1987 में, आई रिमेम्बर, ये सर्कस हैज कम फ्रॉम रोमानिया। उस सरकार का नाम था ओरिएंटल सर्कस, बड़ा फेमस सर्कस था ये, एंड इट हैज कम टू सिटी ऑफ जालंधर। आपको लिटिल बिट यू मस्ट बी अवेयर, बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन prosperous much faster than other states of India, or per capita income was high. So this circus has done a business in Maharashtra, Mumbai, then it has gone to Bangalore, Chennai, Delhi, and then it landed in Jalandhar. Because at that point of time, you need to understand, USSR was on the verge of, you say, disintegration, poverty was increasing, economic activity had slowed down, वहाँ पर मुश्किलें थी, बहुत बड़ी इकोनॉमी, और वहाँ सर्कस जो थे उनको फायदा नहीं हो रहा था। तो इस सर्कस में जो ये इंडिया आया सर्कस, ये किस में आया? एटीए कार्नेट में। सो एटीए कार्नेट कोई ऐसा नहीं कि 15 दिन के लिए होती है, मिनिमम एटीए कार्नेट कैन बी, जो स्लॉट होता है, इट कैन बी फॉर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। सो यू कैन हैव एटीए कार्नेट फॉर 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, 12 मंथ्स, 12 महीने तक आपको एटीए कार्नेट इशू हो सकती है, 1 साल तक भी एटीए कार्नेट। सो ये सर्कस आया, पहले मुंबई गया, फिर बेंगलोर गया, फिर चेन्नई गया, एंड देन इट हैज गॉन टू Delhi, and finally it has come to city of Jalandhar. It was installed. I remember in Punjabi it was written Rabad Ki Gudiya, and as a school going children, I was in 10th standard at that point of time. I remember I come to my native place and told everybody there is a circus which talks about Rabad Ki Gudiya. Actually, those Romanian gymnasts who can twist their body, boys and girls, they were known in the local language as Rabad Ki Gudiya. My respected friends, this circus was there for a period of 1 month. From there it has gone to city of आगे अमृतसर, फिर वापस ये चला गया, फिर वापस आ गया लखनऊ के लिए, और इस तरीके से उन्होंने पूरे इंडिया में अपनी सर्कस से फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर बिजनेस किया, और फिर मेरे हिसाब से कहीं और कंट्री चले गए होंगे। दैट इज हाउ सर्कस बिजनेस यूज टू वर्क, बट सब्सिक्वेंटली सर्कस एज ए
इंस्ट्रूमेंट, मोड ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज नॉट पॉपुलर बिकॉज ऑफ वेरियस लिमिटेशंस जो एनिमल राइट ग्रुप्स के द्वारा आ गई हैं, विच मस्ट बी अप्रिशिएटेड, क्योंकि एनिमल के साथ क्राइम नहीं होना चाहिए। उसमें एनिमल दिखाए जाते थे, उनके साथ क्राइम होता था, लॉट ऑफ उनके साथ उनके हार्श लाइफ होती थी। सो विच सब्सिक्वेंटली was handled with. My respected friend, in addition to that, you can use ATA carnet for the purpose of exhibition meeting. मैंने कहा मीटिंग में यूज कर सकते हैं, which can be for the commercial purpose or for charitable purpose. जो कमर्शियल पर्पज के लिए भी हो सकती है, चैरिटेबल पर्पज के लिए हो सकती है। In addition to that, you can use ATA carnet so as to promote your branch of learning, art, craft, sports। लो ये स्पोर्ट्स कहाँ से आ गया? योगा। क्या योगा वाले भी ATA कार्नेट ले सकते हैं? यस। क्या स्पोर्ट्समैन भी लेते हैं? अरे भाई बिल्कुल लेते हैं। साइंटिफिक साइंटिफिक रिसर्च वाले भी लेते, अरे बिल्कुल लेनी पड़ती है। कल्चरल एक्टिविटी, बिल्कुल यस, इट कैन बी इशूड फॉर दोज पर्पसेज आल्सो, टू प्रमोट फ्रेंडशिप बिटवीन पीपल एंड टू प्रमोट रिलीजियस नॉलेज और वर्शिप। रिलीजियस पर्पसेज के लिए कोई अगर कोई काला शो, कॉन्फ्रेंस या कोई इवेंट हो रही है, you want to take something from India on which the duty is applicable, you can do it. My respected friend, when I say so, let me take some example. You must be aware with Michael Schumacher visiting India in 2011 or 12 sometime, and there is a JP Grand Prix। JP Grand Prix एक स्पोर्ट शो हुआ था somewhere in Dankor, Greater Noida। Greater Noida, some adventure event was likely to happen, and the ticket was around 2,000 to 3,000 rupees. So large number of tickets were sold, and Michael Schumacher come with his car, landed at airport। अब माइकल शुमाकर की जो कार है, उसके पहले सीसी गिनो कैसे, जैसे हमारी वैगनार कार होती है उसका 1000 सीसी, फिर एक कार होती है हमारी मर्सिडीज कार, वो 3000 सीसी, फिर एक हमारी होती है ये कार डस्टर गाड़ी होती है 2000 सीसी। ऐसे सीसी होती है एक कार की। जो माइकल शुमाकर की कार जो चलाता है, जो कि बहुत पावरफुल है, उसके सीसी बहुत ज्यादा होंगे, जाहिर सी बात है, तभी बहुत पावर, उसकी रेसिंग कार है माइकल शुमाकर नाउ। सब्सिक्वेंटली ही बिकम एक्सीडेंट प्रोन, और उसकी उसकी फ्रांस में किसी किसी इवेंट में उसके साथ वो स्कीइंग करते वक्त उसको कुछ चोट लग गई, तो वो चला गया। लेकिन उस समय तक वो इंडिया आया ना, ये 2011 की बात है या 2012 में शायद, 2011 और 2012 समटाइम। And he participated in JP Grand Prix, which was organized in city of Greater Noida। दनकौर एक सर्किट बना, बुद्धा सर्किट, उसमें वो पार्टिसिपेट करने के लिए आया। My respected friends, when he come, he landed at airport। He landed at airport and he sit with the Indian customs, and Indian customs offered him a cup of tea। पहले सेल्फी, फोटो, जो कि किसी भी नेशनल सेलिब्रिटी के साथ होते हैं, और उसके बाद में उसको बिल ऑफ एंट्री दिया गया। ही फिल अप बिल ऑफ एंट्री, और उससे पूछा गया व्हाट इज द सीसी ऑफ योर कार। तो उसने कहा जी मेरी कार जो है लगभग, मुझे आप यहाँ तक बताया, सुनी सुनाई बात है कि ये 8000 सीसी, 7500 सीसी की कार है, बड़ी पावरफुल कार है 8000 सीसी की। तो ये कार पे जो ड्यूटी लगती है, चैप्टर 870310, आप चाहो तो गूगल पे खोल के देख लो, आज भी इस पे ड्यूटी 125% है। 3000 सीसी से ज्यादा, एनी कार विच इज मोर देन 3000 सीसी इन इंडिया, द एप्लीकेबल रेट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी इज एज हाई एज 125%। तो फिर कस्टम ने उससे पूछा माइकल शुमाकर से, माइकल शुमाकर जी ये बताइए कि ये जो आपका सामान है, ये जो आपका सामान है, इस पे इस पे ये बताइए कि ये जो ये जो आपका ये जो सामान है, इस पे इसकी वैल्यू कितनी होगी इंटरनेशनल मार्केट में, वैल्यू कितनी होगी लगभग। उन्होंने कहा जी इसकी वैल्यू जो होगी वो लगभग लगभग मान के चलिए, कोई ऐसे अगर खरीदने जाए इसको बाजार में तो 1 से 1.5 करोड़ रुपए की ये अमाउंट इसकी होगी। बोले ठीक है जी, इसका 125% आप ड्यूटी कर लो, प्लस उस समय सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी होती थी, प्लस स्पेसिफिक ड्यूटी थी। तो कुल जो इम्पैक्ट आया, मैंने खुद देखा उसको, उसका मेरी कस्टम से बात हुई, वो 265%। अगर आज उसको कैलकुलेट करेंगे तो 256% आज ही आ रहा है उसका इम्पैक्ट, 265%। बोले भाई ठीक है जी, ड्यूटी अगर आपकी 1 करोड़ की अगर ये गाड़ी है, तो आप 2 करोड़ और 65 लाख रुपए ड्यूटी दे दो। यू नीड टू पे 2 लाख रुपए और करोड़ 65 लाख। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। तो माइकल शुमाकर जैसा प्लेयर आए हिंदुस्तान में और उसको ड्यूटी देनी पड़े, कितनी ड्यूटी देनी पड़े, इतनी ज्यादा ड्यूटी देनी पड़े, बहुत ज्यादा ड्यूटी है। तो इसलिए उन्होंने निकाली एटीए कार्नेट अपनी पॉकेट से,
और एटीए कार्नेट उन्होंने जो है वो जो दे दी उनको, क्या कहते हैं आपको, इंडियन कस्टम्स को, और इस प्रकार से ड्यूटी जो थी उनकी बच गई उसकी कार की। अदरवाइज ही मे हैव टू पे वेरी हाई रेट ऑफ ड्यूटी जो कि इंपोर्ट कार्गो पे उसको इंडिया में पे करनी पड़ी। मेरे प्यारे मित्रों, मैंने एक स्पोर्ट्स का एग्जांपल लिया, इसी प्रकार से एटीए कार रेट जो है कई बार और टेक्निकल पर्पजेस के लिए भी यूज होता है इंटरनेशनल मार्केट में। मेरी रिक्वेस्ट होगी आप लोग अपने क्वेश्चन लिखते जाएं ताकि मैं उन चीजों को लेता जाऊं। ओनली कंडीशन बीइंग ये सामान जाएगा और सामान वापस जरूर आएगा। अगर सामान वापस नहीं आएगा ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। अगर ड्यूटी पे नहीं करते हो तो क्या होगा अभी बताता हूँ आपको। पहले एटीए कार्नेट को फटाफट फिनिश कर लिया जाए। सो माय रिस्पेक्टेड फ्रेंड्स, ये ऐसा बताया गया कि लगभग $50 बिलियन का ट्रेड हर साल होता है और 2019 में 3 लाख एटीए कार्नेट लगभग लगभग पूरे वर्ल्ड ओवर इश्यूज हुए 78 कंट्रीज में। और प्यारे मित्रों, इसके अलावा जो एक दो बातें और हैं एंड देन आई विल कम टू हाउ टू इसको और ज्यादा इफेक्टिव। इसमें 78 कंट्री है। जिन कंट्री में एटीए कार्नेट नहीं चलती वहां क्या किया जाए? ऐसा हो सकता है देर आर सर्टन कंट्री विद विच यू डू बिजनेस। जैसे आप अपने क्वेश्चन लिखते जाएं चैट बॉक्स में ताकि मैं लास्ट के 30 मिनट्स क्वेश्चन ले लूं आपके और उनको आंसर कर दूं। प्यारे मित्रों, ये 78 कंट्रीज में 78 कंट्री में यूज होती है। फॉर एग्जांपल, देयर इज ए एक्सपोर्टर बेस्ड इन न्यू दिल्ली, ही वांट टू एक्सपोर्ट टू नेपाल। तो नेपाल तो एटीए कार्नेट का मेंबर नहीं है, तो मैं करूं क्या? व्हाट शैल आई डू? अरे नहीं नहीं, इंपोर्ट बॉन्ड। जिन कंट्रियों में एटीए कार्नेट नहीं चलता है वहां आप इंपोर्ट बॉन्ड को लेवरेज कर सकते हैं, इंपोर्ट बॉन्ड को यूज कर सकते हैं। इंपोर्ट बॉन्ड से द्वारा वो कैसे होगा? फॉर एग्जांपल, you take your cargo from Delhi, you go to Raxaul border, you file an import bond which may be 3% bond, 3% of Nepal government. So 3% cargo की value, you file 3% bond plus a bond for payment of duty. For example, duty is 40%, 40 लाख का आपने बॉन्ड दे दिया, 3% का आपने इंपोर्ट बॉन्ड की फी पे कर दी। फी, इंपोर्ट बॉन्ड की फी है 3%, तो 1 करोड़ का 3% 3 लाख रुपए। देन यू टेक योर कार्गो, शोकेस इन दोज इन नेपाल, पार्टिसिपेट इन एग्जीबिशन ट्रेड फेयर, और फिर उस सामान को आप वापस ला सकते हैं। वापस लाएंगे वो 3 लाख रुपए गए आपके। यहाँ पर फीस देनी पड़ती है, वहां पर देना पड़ता है। दिस 3% import bond is applicable in Africa also. I have taken one time a cargo to Kenya, I remember. वहां भी ये 3% का बॉन्ड जो है ये चलता है, जो वहां की कंट्री में भी इसको जो है यूज किया जाता है। सो ये इंपोर्ट बॉन्ड के द्वारा भी आप अपना जो है बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं। माय रिस्पेक्टेड फ्रेंड्स, आप अपने सारे इसमें जो है अपने चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिखते रहें ताकि फटाफट मैं उन क्वेश्चंस को लेके और आप सभी के उनके जो जवाब हैं उनको मैं साथ साथ देता रहूं। आप चैट बॉक्स में अपने अपने सारे क्वेश्चन देते रहे। अभी तक मैं कोई क्वेश्चन नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन अगर आप लिखते रहेंगे इट विल बी ए ग्रेट आइडिया। अब एक चीज जो मैंने अभी रोक दी थी, अभी मैं उस चीज को भी डिस्कस कर लूँ साथ में। जब भी आप एटीए कार्नेट के साथ जाएं, माय रिस्पेक्टेड फ्रेंड, यू नीड टू लेवरेज। एक आप साथ में कर सकते हैं, एक क्या कहते हैं वो क्या कहेंगे उसको, एक स्कीम यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू कट द कॉस्ट ऑफ योर बिजनेस। अपने बिजनेस की कॉस्ट को कम करने के लिए मेरे प्यारे मित्रों आप यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? एमडीए स्कीम। ये एमडीए स्कीम क्या है, जरा ध्यान से सुनो। ये मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट स्कीम इज अनाउंस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गूगल पे टाइप करो मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस। अंडर दिस स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, in order to diversify your export business to various market, give you some money to participate in trade fairs, in exhibitions, and उसकी जो कॉस्ट है आने जाने की वो गवर्नमेंट कवर करती है। मेरे प्यारे मित्रों, अब मेरी रिक्वेस्ट होगी आपसे, आपके जो भी सवाल हैं वो आप लिखते रहें यहाँ पे चैट बॉक्स में ताकि उनको मैं एंड में ले लूंगा, क्योंकि मैंने लास्ट का हाफ एन आवर इसी काम के लिए रखा है। एटीए कारण मेरी तरफ से डिस्कस हो गई, अब मैं उसकी कॉस्ट कटिंग पे आ गया हूँ और लास्ट के 30 मिनट्स में आपके साथ क्वेश्चन आंसर में ही यूज करना चाहूँगा। माय रिस्पेक्टेड फ्रेंड्स, सो वी वर डिस्कसिंग हाउ टू कॉस्ट कटिंग। एक स्कीम है, गूगल पे आप लोग टाइप करेंगे एमडीए स्कीम, मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज एडमिनिस्टर्ड, ये एडमिनिस्टर होती है, कौन एडमिनिस्टर करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
भारत सरकार की स्कीम है। ये स्कीम क्या कहती है? इस स्कीम के अंतर्गत प्यारे मित्रों, आपको सरकार कुछ आर्थिक मदद देती है। गवर्नमेंट फाइनेंस योर फॉरेन ट्रिप्स। नाउ लेट मी टेक फर्स्ट बिल्ड ए केस। नाउ लेट मी टेक वन ऑफ यू इज ए मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर बेस्ड इन इंदौर। इंदौर में एक व्यापारी हो आप, और यू आर एक्सपोर्टिंग ओनली टू यूरोप एंड यूएसए। Government wish you to, and recently there is a recession in USA and Europe because of corona pandemic and all that, and your business has suffered a lot. So one day commerce minister was, या कोई government officer was, सुना was and was organizing some symposium or some workshop. Exporters has come and exporters complained to government of India, देखो जी सर रिसेशन आ गया और यूएस में रिसेशन आ गया, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर नॉट एबल टू, हम उसको अब ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो दुनिया में यूरोप में अगर देखा जाए तो टोटल कंट्री 36 है, और 36 कंट्री नॉर्थ अमेरिका में है। केवल नाफ्टा की कंट्री देखे जाए तो 3 ही है, लेकिन पूरे नॉर्थ अमेरिका कंट्री 36 है। तो केवल 72 कंट्री बनते हैं। उसमें से जो काम के कंट्री हैं पूरे नॉर्थ अमेरिका में, वो कनाडा, यूएसए, मैक्सिको बस। और थोड़ा बहुत सेल हो सकती है ये ग्वाटेमाला, बहुत लिमिटेड ऑप्शन में, क्योंकि उनकी इकोनॉमी में इतना ज्यादा साइज उनका बड़ा है ही नहीं। माय रिस्पेक्टेड फ्रेंड्स, इन द सिमिलर फैशन, इसी प्रकार से ये जो क्या कहते हैं हमारा ये जो है यूरोप, यूरोप में भी सम ऑफ द कंट्रीज ऑफर वेरी लिक्विडेटिव ऑप्शंस बट अदर डज नॉट ऑफर। सो उस केस में माय रिस्पेक्टेड फ्रेंड्स, आप जो है इन दो कंट्री में अगर अगर अलावा जो बिजनेस, दुनिया में 200 कंट्री है, आप अपने आप को लिमिट कर रहे हैं 3 कंट्री यहाँ, कोई 15-20 कंट्री यहाँ, 20-25 कंट्री में इफ यू आर प्लानिंग टू डू बिजनेस सिटिंग इन इंदौर, doing lot of manufacturing, quality manufacturing, but limiting your business options only to what we call as only to handful of countries, you cannot be successful. My respected friends, in that case, what is required? चाहिए होना क्या चाहिए? इस केस में आपको और कंट्री में डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, और सरकार आपको फिनांस करती है। जैसे सरकार कहती है इफ यू वांट टू डाइवर्सिफाई योर बिजनेस टू अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, आसियान कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, माने ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप, सीआईएस कंट्रीज, गवर्नमेंट विल गिव यू सम मनी। ये फिगर थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी जो मैंने लास्ट टाइम चेक किया था वेबसाइट पे, 2,80,000 रुपी लमसम, if your company is approved through your export promotion council, आपकी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के थ्रू अगर आपका नाम अप्रूव हो जाता है, so you need to approach to Ministry of Commerce, जो डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट, थ्रू योर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और योर कमोडिटी बोर्ड और योर ईडीए विच इज एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, और जिनका कोई नहीं है वो फीओ के थ्रू अगर आप अप्रोच करते हैं, so they will sanction that and you can participate in one trade fair in Africa. Let us take an example. You choose a trade fair in Nigeria, which is the largest economy of Africa, which has already left behind South Africa को काफी पीछे छोड़ दिया उसने, और you want to participate in a trade fair in Nigeria. Now you take ATA carnet in order to make the impact of your ये जो duties है इसको जीरो करने के लिए आपने ATA कार्नेट ले लिया, लेकिन इसके साथ साथ मेरे प्यारे मित्रों, आपने एमडीए स्कीम ले ली। एमडीए स्कीम क्या करेगी? जो आने जाने का खर्चा है, जो कंटेनर के खर्चे होंगे, रहने का खर्चा होगा, फ्लाइट का खर्चा होगा, होटल का खर्चा, वहाँ 15 दिन खाने पीने के लिए लमसम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर आप लैटिन अमेरिका जा रहे हैं, लैटिन अमेरिका का मतलब ब्राजील, क्या है उसका नाम, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, पेरुग्वे, चिले, है ना, वेनेजुला, क्या नाम है, बोलिविया, पेरू, क्या इक्वाडोर, दीज आर द कंट्रीज, ये सब कंट्रीज हैं, सूरीनाम, ये कोई 8-10 कंट्री है, 15 कंट्री है वहां पे, जहां इफ यू आर गोइंग टू दोस दिस रीजन, आपको प्यारे मित्रों, आपको सरकार 2,80,000 रुपया लमसम और एक ट्रेड फेयर की जो कॉस्ट है वो सरकार बियर कर लेगी। यू कैन लेवरेज एटीए कार्नेट बाय टेकिंग योर गुड्स in a duty free manner, plus that cost will be taken care of by government of India. This is one way. If you have 2.5 लाख रुपया, क्योंकि लैटिन अमेरिका ज़्यादा दूर है, ट्रांसलेशन की कॉस्ट है, वहाँ पोर्चुगीज लैंग्वेज है या स्पेनिश है, यहाँ भी अफ्रीका में भी फ्रेंच है या और रीजनल लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि ईस्ट अफ्रीका में स्वाहिली है, ज़्यादातर कंट्री में फ्रेंच है, कुछ जगह इंग्लिश भी है, कुछ जगह रीजनल लैंग्वेज है जैसे जूलू है, इस तरीके की लैंग्वेजेस होंगी या उनकी नेटिव लैंग्वेजेस हैं।
but you can have a translator. But Africa is much more nearer. यहाँ आने जाने का फ्लाइट का खर्चा काफी कम है when compared to Latin America. 2.5 लाख रुपया। फिर इसके अलावा प्यारा मित्रों, इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट टू CIS कंट्रीज, ये जो रशिया से निकल के बाहर आए हैं, 1,80,000 रुपया। फिर आपका जो आता है यूरोपियन कंट्री, 1.5 लाख रुपया। और फिर आपके एशिया की कंट्री जैसे थाईलैंड, ये क्या है आपका, आपका हो सकता है मलेशिया, या आपका हो सकता है गल्फ में सीरिया, ईरान, इराक हो सकता है, इधर से आपका चाइना हो सकता है, जापान हो सकता है, आपका फिजी तक कोई भी कंट्री हो सकता है। 1,20,000 रुपया। सो ऐसे 5 कॉन्टिनेंट, एक बार में एक कॉन्टिनेंट के लिए सरकार आपको एक्सपोजर देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस यू 25% ऑफ द टोटल, 25% के जो पास फंड है टोटल, जो MDA स्कीम के अंदर गवर्नमेंट सैंक्शंस करती है मेरे प्यारे मित्रों, उसको सरकार जो है, भारत सरकार जो है वो, जो ये जो खर्चा होता है उसको भारत सरकार जो होती है वो 25% जो टोटल खर्चा है वो MSME के लिए रखती है। फॉर MSME एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिजर्व्स द फंड्स of 20, or government of India also conduct various kind of you say trade, various kind of you take trade delegations, they take it। और इसमें ITPO, भारत सरकार की एक बॉडी है, ITPO, इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, भारत सरकार की बॉडी है ITPO, इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वो बहुत सारे बायर सेलर के डेलीगेशन, खास तौर से जो छोटे शहरों से छोटे व्यापारी हैं, जिनको बेचारों को ये भी नहीं पता इमिग्रेशन कैसे करना है, फॉरेन में जाना कैसे, ड्रेस क्या करना है, होटल कैसे बुक कराना है, वहाँ ट्रेड फेयर में जाके बैठना कैसे, ऐसे। लेकिन बहुत इंटेलिजेंट है, उनका काम बहुत अच्छा है, उनकी बीनाकारी, उनका डिजाइन, उनका पैटर्न, उनके जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं, ताकि भारत कोई केवल बड़े शहरों का देश नहीं है। यहाँ गांव, दूर दराज, ट्राइबल आर्ट, पीछे के समाज के पिछड़े हुए लोग, उनको भी आगे लाना है। और इस कामों में ITPO, इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, play a very important role so as to encourage small and medium enterprises from India to participate in such kind of trade fairs, in such kind of exhibition, and government of India has reserved 25% ऑफ टोटल फंड्स, जो टोटल फंड्स होंगे उसके साल के बजट के 25% बजट MSME, MSME मीन्स माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए रिजर्व कर दिया गया है। रिजर्व का मतलब वो पैसा केवल MSME को जाएगा, उन्हीं लोगों के ऊपर ये पैसा खर्च किया जाएगा। प्यारे मित्रों, आपके सवालों का मुझे हमेशा इंतजार रहेगा, क्योंकि मैंने लास्ट के 20-25 मिनट इसी काम के लिए रखे हैं, नहीं तो मैं और इस डिस्कशन को आगे लेंदी कर सकता हूँ। पर जो मोटा मोटा खाका है वो मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है, और मैंने उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स कॉस्ट कटिंग के लिए और उसको कैसे इफेक्टिव बनाया जाए डिस्कस कर लिया है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, you must be aware with the name of the company called Mahindra. Mahindra Tractor want to diversify their business। आज से 10 साल पुरानी बात है, 15 साल पुरानी बात है। They want to expand and diversify their business into Africa। वो अफ्रीका में देखना चाहते कहाँ ट्रैक्टर बिक सकता है। सो दे आइडेंटिफाई, 15 साल पहले उन्होंने देखा कि ईस्ट अफ्रीका इज ए ग्रोइंग इकोनॉमी। ईस्ट अफ्रीका में कौन कौन से कंट्री है? तंजानिया इज ए ग्रोइंग इकोनॉमी, केन्या ग्रोइंग इकोनॉमी, युगांडा वेरी स्टेबल एंड ग्रोइंग इकोनॉमी, रवांडा, बुरुंडी, ये 5 कंट्री है। और पांचों की लैंग्वेज एक है, क्या है? स्वाहिली है। पांचों वेल कनेक्टेड है। कहाँ? 2 पोर्ट है, मोम्बासा और दार एस सलाम से। और पांचों कृषि प्रधान देश है। और पांचों में गुजराती पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन बहुत है। पांचों में इंडियन बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखाएं हैं। पांचों इंडिया से बहुत क्लोज है, कल्चरली, सोशली, इमोशनली, खाना पीना, हर चीज में। और लैंग्वेज, स्वाहिली लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज सिस्टर लैंग्वेज है, काफी दोनों में समानता है। ये अरेबिक, हिंदी एंड स्वाहिली सिस्टर लैंग्वेज है, इनमें बड़ी प्यारे मित्रों। तो वो देखना चाहते हैं, तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया और अप्लाई कर दी ATA कार्नेट। पहले ATA कार्नेट मैंने कहा, इंडिया बिकम मेंबर टू ATA कार्नेट इन 1994 एंड इंडिया बिकम इलेक्ट्रॉनिक मेंबर इन 2006। इलेक्ट्रॉनिक मेंबर का मतलब
You can do documentation electronically. Your document will also move electronically from one country to another country. इसका इलेक्ट्रॉनिक फुल फ्लैज मेंबर इंडिया बना 2000, लेकिन 1994 where we started process of economic reform in 1991. 1994 में मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट बहुत 1994 का ईयर बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर रहा हमारी इकोनॉमी के लिए। प्यारे मित्रों, ये भारत सरकार ने उस समय 2004 में महिंद्रा ट्रैक्टर वांट टू एक्सपेंड एंड एक्सप्लोर एंड डाइवर्सिफाई एंड आइडेंटिफाई एंड लुक आफ्टर न्यू मार्केट्स, नए बाजार की संभावनाएं तलाशने के लिए कहा जा रहा है अफ्रीका में। अफ्रीका में 54 कंट्री है, 54 कंट्री है। 54 कंट्रियों में 5 कंट्री उन्होंने एक आरटी से रिसर्च स्टडी कराई कि अफ्रीका में कहाँ जाया जाए, कौन सा देश होगा जहां अफ्रीका में हमारा काम हमारा बिजनेस ज्यादा चलेगा। प्यारे मित्रों, जब उन्होंने इस चीज को तलाशा तो देखा कि ये 5 कंट्री हमारे लिए बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा फायदे का सौदा हो सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने फिर क्या किया, वहां जाके सबसे पहले सामान लेके गए मोम्बासा। मोम्बासा बहुत बड़ा पोर्ट है केन्या में, और वहां से गिलगिल, गिलगिल से नैरोबी, नैरोबी से फिर मलाबा होते हुए युगांडा। तो ट्रैक्टर ट्रैक्टर बिकते कैसे हैं, जो वहां के चर्च ऑर्गेनाइजेशन होते थे, चर्च के ऑर्गेनाइजेशन होते थे, वहां पर चर्च ऑर्गेनाइजेशन में जब चर्च का मेला लगता था संडे को, वहां ट्रैक्टर ले जाके खड़ा करते थे। तो किसान, गांव से दूर दराज से किसान आता था चर्च में अपनी प्रेयर में, संडे को सवेरे मास होता था, उसमें पार्टिसिपेट करता था। उसके बाद ट्रैक्टर बाहर खड़ा होता, तो ट्रैक्टर में हैंडल को लॉक कर दे, ट्रैक्टर घूमता रहता था ऐसे, महिंद्रा ट्रैक्टर। तो किसान पूछता था, बाबूजी कितने का ट्रैक्टर है, कहाँ से आया, कैसा है, सारी चीजें जानकारी। एक सेल्समैन जो लोकल लैंग्वेज में, जो वहां का स्वाहिली स्पीकिंग लोकल पर्सन होगा, उसके साथ एक इंडियन खड़ा होगा जो इंग्लिश में बात कर सकते हैं आपस में और एक्सप्लेन कर सकता है किसान को। उसने बताया, और इस तरीके से महिंद्रा कंपनी ने बहुत बड़ी तादाद में केवल चर्च के सामने ट्रैक्टर खड़ा करके, जहां पर फार्मर आएंगे प्रेयर के लिए, पर्पज तो कुछ और था, वो आए तो पूजा करने थे, अपने मन की शुद्धि के लिए आए थे, अपनी स्पिरिचुअल अपनी ग्रोथ के लिए आए थे, लेकिन वहां से ट्रैक्टर लेके चले गए। इस प्रकार से ट्रैक्टर की सेल को पूरे केन्या में बहुत बड़ा एक माइलेज दिया महिंद्रा कंपनी ने, बाय बाय शोकेसिंग द ट्रैक्टर टू प्रोस्पेक्टिव बायर। बड़े बड़े बायर्स होते हैं हमारी कंट्री में भी, मेले लगते हैं, जैसे सोनपुर का मेला बिहार में लगता है, बहुत फेमस होता है, बहुत लोग आते हैं। अलवर में एक मेला लगता है हर साल, पुष्कर मेला, बहुत लोग उसमें आते हैं। तो किसान, हमारे यहाँ का किसान, कुंभ मेला, ये क्या, ये इवेंट्स हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, ये स्पिरिचुअल इवेंट्स हैं। और इसमें हम जाएंगे तो हमारी कैचमेंट एरिया बहुत बढ़ जाएगा, बहुत छोटे टाइम में बहुत बड़ी ज्यादा जनता से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को नए लेवल पर, नई ऊंचाइयों पर, नई बुलंदियों पर और नई सीमाओं तक ले जा सकते हैं। माय रिस्पेक्टेड फ्रेंड्स, फिर उन्होंने केनिया के बाद में युगांडा गए, सेम ट्रैक्टर लेके गए। क्या काम किया, याद रखो, ट्रांजिट फाइल ले लिया, क्योंकि इन सभी कंट्री कस्टम यूनियन है, इनकी कस्टम ड्यूटी एक है। एक कस्टम ड्यूटी होने की वजह से ये सामान को युगांडा लेके गए, युगांडा से सामान को रवांडा ले आए, ट्रैक्टर को वहां ऑर्डर बुक किए, रवांडा से बुरुंडी ले आए, बुजुम्बुरा, वहां पर ऑर्डर बुक किए। इस काम में लगभग 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 5 महीने का टाइम लग गया। और फिर अगले 2 महीने उन्होंने केन्या में 9 महीने का टूर किया, बहुत बड़ी तादाद में महिंद्रा ट्रैक्टर को पूरे ईस्ट अफ्रीका में पॉपुलर कर दिया। प्यारे मित्रों, मैं अक्सर अफ्रीका के कंट्री में जाता हूँ, एयरपोर्ट से लेके गांव, खलियान, किसान, मजदूर, सबसे मुलाकात होती है। सिटी से बाहर चले जाते हैं, देखते हैं ट्रैक्टर चलते हुए, लिखा होता है महिंद्रा भूमि पुत्र, मन खुश होता है, बहुत आनंद मिलता है, हमारे देश का ट्रैक्टर किसी और कंट्री में आके चल रहा है। इस प्रकार से अपनी सक्सेस को, अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक, नई बुलंदियों तक, नई सीमाओं तक लेके गई महिंद्रा कंपनी बाय सेलिंग ए ट्रैक्टर। माय रिस्पेक्टेड फ्रेंड, इन एडिशन टू दैट, कुछ बातें मैं प्रिकॉशन आपको दूंगा। कभी भी कोई पेरिशेबल प्रोडक्ट्स के लिए एटीए कार्नेट इशू नहीं होती है। पेरिशेबल फूड प्रोडक्ट्स नहीं इशू होगी, फूड प्रोडक्ट्स के लिए इशू नहीं होगी। किसके लिए, मर्चेंडाइज ट्रेड, ऐसा जो फिजिकल हो, जो सस्टेनेबल हो। कभी भी खाने पीने के सामान के लिए इशू नहीं होती है। और सैंपल, कई बार लोग कहते हैं क्या सैंपल भेज देंगे, मैं कहता हूँ सैंपल का मतलब दिखाने वाला सैंपल फिर वापस लाना है। अगर सैंपल देने वाला है जो वापस नहीं आएगा, एटीए कार्नेट नहीं है। दैट विल बी डन थ्रू सैंपल। जो सैंपल के रूल्स हैं, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-21, उसमें सैंपल के रूल बताए गए हैं।
कि आप किस किस क्या रूल्स एंड गाइडलाइंस है सैंपल देने के। माय रिस्पेक्टेड फ्रेंड्स, यू कैन नॉट गिव सैंपल्स अंडर एटीए कार्नेट। एटीए कार्नेट की ये प्री कंडीशन है, सामान जाएगा और सामान वापस जरूर आएगा। अगर वापस नहीं आ रहा है सामान, तो प्यारे मित्रों वो फिर यूज नहीं हो सकता, वो फिर सक्सेसफुल नहीं हो सकता। किस काम के लिए, किस काम के लिए सक्सेसफुल नहीं हो सकता? फॉर द पर्पज ऑफ एटीए कार्नेट। सो ये कुछ ऐसी बातें थी जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा था। वी स्टिल हैव 20 मिनट्स। अगर आपके कोई सवाल है पूछे, नहीं तो सेशन मेरी तरफ से लगभग लगभग कंप्लीट कर गया। अगर कोई सवाल नहीं आता है तो मैं फिर एक बार पूरी बात को समराइज करूंगा एंड देन वी विल वाइंड अप। माय, अगर आपके कोई सवाल हो जरूर लिखें सो दैट आई कैन आंसर देम चैट बॉक्स में। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, चैट बॉक्स खोल के बैठा हूँ और अगर कोई सवाल आते हैं जरूर लूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, लो जी, मैं रिपीट कर दूं सारे डिस्कशन को। सो डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेक अनदर 5 मिनट्स टू समराइज द होल डिस्कशन एंड देन वी विल वाइंड अप आवर डिस्कशन। हमने आज शुरुआत की एक नया सब्जेक्ट, एटीए कार्नेट। एटीए कार्नेट क्या होता है? एडमिशन टेम्परेरी या टेम्परेरी एडमिशन। पहली भाषा कौन सी है? इंग्लिश, एडमिशन टेम्परेरी। और दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा टेम्परेरी एडमिशन। या तो एडमिशन टेम्परेरी फ्रेंच भाषा का वर्ड है या इंग्लिश भाषा का वर्ड है। दोनों को टी कॉमन हो गई, एटीए। कार्नेट का मतलब संघ, संघ का मतलब एसोसिएशन। ये एक ऐसे 78 कंट्रियों का संघ है, समूह है, एक ऐसी बॉडी है जो कि विदेश व्यापार को ज्यादा बढ़ाने के लिए, नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए, नई बुलंदियां छूने के लिए, आपस में सहयोग करने के लिए ड्यूटी फ्री इंपोर्ट फैसिलिटेट करती है। सामान आए सामान जाए। पर्पज क्या होगा? आप सामान एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करेंगे, ट्रेड फेयर में ले जाएंगे, नुमाइश में ले जाएंगे या कहीं और लेके जाएंगे। प्यारे मित्रों, आप सामान शोकेस करेंगे, आपकी व्यापार की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई को टच करता हूँ, यूज करता हूँ, चाहे तो मेरी उसके प्रति विलिंगनेस बढ़ जाती है, खरीदने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। कोई मुझसे कहे ये ड्रेस बहुत सुंदर है, मैं नहीं मानूंगा। जब मैं सामने देखता हूँ तो मेरी पर्सनालिटी बहुत सहसा ही उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। प्यारे मित्रों, इस प्रकार से एटीए कार्नेट 78 कंट्रियां जिसमें इंडिया मेंबर है। इंडिया बिकम मेंबर इन 1994, फुल मेंबर इन 2006, इलेक्ट्रॉनिक मेंबर आल्सो, डिजिटल मेंबर, डिजिटल ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए बन गया। ये डब्ल्यूसीओ, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, जो ब्रुसेल्स में बेस्ड है, बेल्जियम में, वो रन करती है। 78 कंट्रियों में चलती है। 77 कंट्री को कस्टम इसको मैनेज करता है। तो आप इससे ड्यूटी फ्री इंपोर्ट सामान ले जा सकते हैं, सामान ला सकते हैं। ये इसका बेसिक पर्पज होता है। इसके अलावा प्यारे मित्रों, आप यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं? इंपोर्ट बॉन्ड। जो कंट्री मेंबर नहीं है, मैंने कहा 200 कंट्री है, जो कंट्री एटीए कार्ड के मेंबर नहीं है, वहां पर आप इंपोर्ट बॉन्ड 3% का इंपोर्ट बॉन्ड देके अपने सामान को ड्यूटी फ्री फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड फेयर एंड एग्जीबिशन ले जा सकते हैं और अपना सामान दिखा के अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। प्यारे मित्रों, इसके अलावा आप एमडीए स्कीम को यूज कर सकते हैं। एमडीए, मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, को आप यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू कट द कॉस्ट ऑफ योर बिजनेस। अपने बिजनेस की कॉस्ट को कम करने के लिए, उसको नीचे ले जाने के लिए, आप अपनी कॉस्ट को, जो है अपने बिजनेस मॉडल को और ज्यादा सक्सेसफुल करने के लिए आप उसको कर सकते हैं और जिससे आपके बिजनेस की कॉस्ट कम हो जाएगी। अगर कोई नहीं है सवाल प्यारे मित्रों, तो हम लोग इसको आगे, इसको यही वाइंड अप कर देते हैं। मेरे हिसाब से आई कैन नॉट सी एनी क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ चैट बॉक्स में। मैं फिर ट्राई करता हूँ एक बार फिर से, यहाँ से मैं एक बार ट्राई करता हूँ फिर से। 1 मिनट, मुझे एक लिंक अभी आया है, मैं देखता हूँ कोशिश करके। इफ आई एम एबल टू गो, अभी तक तो मुझे कोई क्वेश्चन दिखा नहीं है। मैं 1 मिनट जरा सा ट्राई कर लूँ। थोड़ा नेट मेरा स्लो है, नो प्रॉब्लम, वेट फॉर ए मिनट। और 1 मिनट में चैट बॉक्स को देख लूँ जरा सा। अगर ये खुल जाता है तो देन आई कैन टेक दोज क्वेश्चंस।
क्वेश्चन दिखा नहीं इसमें. चलो, so if I cannot see any questions, we can wind up our discussion here because I am not able to locate any questions in the whole chart. We can wind up here, and I wish you, should you find any problem, you can write me. You can write me in the email. My email is ramsingh@iift.ac sorry .edu. So IIFT. अच्छा, आप क्वेश्चन रीड कर दें अगर कवलीन, शुड यू, इफ यू कैन रीड दोज क्वेश्चंस. आई कैन नॉट ओपन देम. आई ट्राइड ओपनिंग इट, आई कैन नॉट. इफ यू कैन रीड इट, आई कैन टेक दोज क्वेश्चंस. फटाफट बोलते हैं बेटे. Yes, sir. The first question is, are marine containers also imported and re-exported using ATA Carnet? नो, के लिए बॉन्ड देना पड़ता है. कोई भी कंटेनर आता है वो 6 महीने तक हिंदुस्तान में रह सकता है. इसलिए देती है शिपिंग लाइन, वो एटीए कार्नेट में मेरीन कंटेनर नहीं आते हैं. हाँ, अगर वो ऑर्डर बुक करने के लिए किसी ट्रेड फेयर में आ रहे हैं, केवल दिखाने के लिए न्यू टाइप ऑफ कंटेनर है, तो एटीए कार्नेट में आ सकते हैं. लेकिन अगर उसमें मर्चेंडाइज कार्गो आया है, इंपोर्टेड कार्गो, तो वो मेरीन कार्गो जो कंटेनर्स हैं वो एटीए कार्नेट में नहीं आ सकते किसी भी कीमत पर. मेरीन कार्गो का उसके लिए प्रोसीजर अलग है. उसके लिए एक रनिंग बाउंड देती है शिपिंग लाइन हर एक इंडियन कस्टम्स को, और उसके बाद में जो है वो क्या कहते हैं आपका जो वो 6 महीने हिंदुस्तान रह सकते हैं. सेम द कंटेनर्स विच हैज कम टू यार्ड, एंड अगेन द सेम कंटेनर्स आर यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट्स, और उनको फिर वापस भारत से बाहर भेज दिया जाता है. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is, how can we use ATA Carnet for two exhibitions scheduled within a gap of 1 month time for two countries located in two regional economic groupings, for हाँ example, EU and SACU? हाँ, actually it will be better if you plan it in advance. For example, if there are two different regional economic grouping, then you have to do two different documentation, and for that you have to apply for two. I mean, movement can take place from one regional economic grouping to another regional economic grouping, but to FICCI you have to separate, because both of them have a separate custom rules, separate procedure. So you apply to separate in ATA Carnet. First you take to, for example, let us take an exemption. You take it to Germany. In Germany, you showcase your goods, and then there is a gap. You have to go to another regional economic grouping. Let us take another example, which will happen in Norway. ईस्ट उसको बोलते हैं यूरोपियन फ्री ट्रेड एरिया. तो आपकी पहली एग्जीबिशन जर्मनी में है, सेकंड नॉर्वे में है, जो ईएफटी है, जो कि ईयू का मेंबर नहीं है. नॉर्वे इज नॉट ए मेंबर. तो आप ले जा सकते हैं, पर आपको नॉर्वे की एटीए कार्नेट अलग लेनी पड़ेगी और ईयू की अलग लेनी पड़ेगी. सो पहली एटीए कार्नेट आप लेके जाएं, फिर आप कहीं यार्ड में या किसी वेयर हाउस में या किसी जगह, वो उसके चार्जेज आपको बियर करने पड़ेंगे. 1 मंथ का गैप है, तो जो भी उसके चार्जेस होंगे, now it is your duty to work it out what way it makes sense. क्या उस कार्गो को वापस लाया जाए, ले जाया जाए, या वहीं किसी यार्ड में रखा जाए. मुझे लग रहा है किसी यार्ड में रखेंगे, इट विल बी चीपर, एंड यू कैन ट्रांसपोर्ट इट फ्रॉम जर्मनी टू ईएफटीए, और वहां पर वो सेकंड जो आपकी जो एटीए कार्नेट है उसको लेवरेज करके वहां पर शोकेस करके, और फिर देन यू कैन ब्रिंग बैक दिस कार्गो अगेन बैक टू इंडिया. सो ये दो डिफरेंट रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग हो गए, गैप भी हो गया, लेकिन यू हैव टू plan it well in advance. हाँ जी, next. Can we take exhibition design in this scheme, including multiple laptops? I say you can take any sales generating assets. When I say sales generating assets, multiple laptop नहीं. अगर 4 लोग हैं तो 4 ही लैपटॉप लेके जाएंगे. 1 person can carry 1 laptop. हाँ, आप प्रोजेक्टर एक की बजाय 2 ले जा सकते हैं, 3 ले जा सकते हैं, या कुछ साउंड सिस्टम है 1 की बजाय 2 ले जा सकते हैं. दैट दोज आर नोन एज ए सेल्स जनरेटिंग एसेट्स, जो आप लेके जाएंगे और वापस भी लाएंगे. ऐसा नहीं उसको बेच आएंगे वहां पे. यू वट एवर यू टेक abroad, you must bring that back, and that can be covered, some publication material, some reading material, some आपके जो आपके लाइट एंड साउंड शो, इस तरीके की चीजें भी आपकी जो है वो एटीए कार्नेट में कवर हो सकती है. दैट कैन बी कवर्ड within the gamut of ATA Carnet. हाँ जी, next. अच्छा, all questions are done. So my respected friends, I wish good luck to each one of you, and wish you happy Merry Christmas, and also wish you very happy New Year, because this is my last session with you all. I hope this will help you to take your business to new heights. Never hesitate.
to write me. My email is ramsingh@iift.edu. I assure you I will revert you. Maybe not on the same day. Allow me some time. I am into administration, lot of public administration, sometime on travel, even during Corona times, lot of activities I have to take care of. So मैं आपको रिस्पॉन्ड जरूर करूंगा, चाहे मुझे 2-3 दिन लगे, लेकिन आप नेवर हेजिटेट इफ शुड यू फाइंड एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू एटीए कार्निक। और मेरी सभी अपने प्यारे मित्रों से, देशवासियों से रिक्वेस्ट है इसी भावनाओं के साथ कि आने वाला भविष्य हमारा बहुत स्वर्णिम होगा, हमारा देश तरक्की करेगा और हम भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में एक एक जैसे कहते हैं ना, एक उभरता हुआ भारत, नया भारत, सभी को समायोजित करने वाला भारत, सभी को साथ लेके चलने वाला, प्रेम वाला, स्नेह वाला, धर्म वाला, कर्म वाला और ज्ञान वाला, ऐसा भारत का निर्माण करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों से मैं अलविदा चाहता हूँ। आपके लिए आज का सेशन शुभ हो और ज्यादा सुखदायी हो, ऐसी कामना के साथ आप लोगों से विदाई चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड टाइम। बाय बाय। गुड नाइट।